Good morning, everyone. Thank you for joining. Good Good morning, morning, sir. sir. Morning, Good morning, sir. good morning. So, guys, as you said, as we see today, the front page, urban outpace the rural for the first time in last 6 quarters. So, अभी ये लोग ने जो बोला है वो वैल्यू टर्म्स में है, वॉल्यूम टर्म्स में नहीं बात की है. And specifically, they have mentioned about the personal care and the beauty care. So, आज if you see the HUL is up 4.5%. Just to show you something. अभी ये मैं ट्रैक करने का जब मैं एनालिस्ट था ना दिस investing.com पे हैज टू मेक दिस वॉच लिस्ट एंड ना यहाँ पे सब है मेरे वॉच लिस्ट में. तो यहाँ पे किसी निफ्टी इंडाइसेस यूएस फार्मा कंपनीज दैट आई नीड टू इन्वेस्ट अभी मुझे जो इन्वेस्ट करने का था. तो यार वी गेट अ लाइव नंबर ऑफ ऑल द मार्केट्स इन द वर्ल्ड. investing.com करके एक है, if you guys know. यहाँ पे you can create your own watch list and यहाँ पे ना you can keep on adding your watch list ऐसा है. या फिर कोई स्टॉक इसमें ऐड करना तो you can add a stock over here. तो मैंने ये इंडाइसेस रखे थे तो ये सब थे ओवरऑल वर्ल्ड के थे. मतलब इसमें तुम्हारा नैस्डैक भी आया, एफटीसी भी आया. सो सिंस आई हैव टू ट्रैक द ग्लोबल मार्केट्स तो ये सब मैं रखने का एक एक इस पे मुझे सब मिल जाने का. बट हाँ प्रोबेबली इफ आई सी दिस एफएमसीजी इज द टॉप गेनर. प्रोबेबली इट इज बिकॉज ऑफ द एचयूएल. वही 4-4.5% ऊपर है. उसकी सीईओ भी चेंज हुई है एंड शी इज फ्रॉम द ब्यूटी केयर सेगमेंट ओनली. आज न्यूज था. सो शुभम, विल यू लाइक टू टेल अबाउट दैट न्यूज? क्या है ये? Yes, sir. Good morning, sir. Good morning, everyone. So today's news is all about FMCG sector, which is first time in 6 quarter that is sales value grew faster in urban areas than rural areas. If we talk about in June quarter of financial year 2026, urban FMCG value growth reached 7.7%, which is surpassing rural value growth of 7.1%. And the reason behind this growth in the urban sector, urban region, is just because of the boost from the branded essential, which helped the strong sales in branded commodities. Personal care, especially, and dairy contributed to urban momentum. And the second reason is behind this growth is urban areas saw the initial benefit of tax cuts and interest rate reduction, means the changes in the monetary policy which is happened recently, which led to increment in the urban sector. And in June quarter, the overall FMCG value growth, if we talk about, it is current fiscal year is at 7.3%. And if we talk about the branded commodity surge, which is sales in this segment rose at around 23%, while dairy grew at 8.4% and personal care grew at 5.1%. As sir you talked about, the CEO has changed in HUL, and HUL is a big has a big impact in the FMCG sector, and CEO has changed, which sees also from the personal care and beauty care side. So this happens generally. This happens because of the reason behind this. And if we talk about the previous year, the same quarter, urban value growth was 5.8%, while rural was significantly higher than higher at 11.7%. Previous year I'm talking about. And overall FMCG value growth was 9%. And if we talk about the in quarter 4 of financial year 25, Jan to March, overall FMCG value growth was 11%, driven by the rural volume growth at 8.4%, while urban volume growth slowed down to 2.6%. This is all about the today's news of FMCG. ओके ग्रेट. वापस बोलो जरा ये फर्स्ट 4 पॉइंट. सर इसमें क्या था कि जो 6 क्वार्टर थे, उस 6 क्वार्टर में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जो एफएमसीजी सेल्स जो हुआ है वो ग्रो हुआ है अर्बन एरियाज में सर, एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज. हाँ फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि यस सर. एफएमसीजी हैज इंक्रीज्ड. तो इधर ना हेडिंग में ही यूजुअल लिख देते हैं एफएमसीजी ग्रोस फास्टर. ये क्या है? अभी ये हेडिंग और तुम ये हेडिंग दोनों सेम ही है ना? तुमने अलग क्या लिखा है फिर?
अच्छा वो सर, मैंने सोचा थोड़ा और इजी वर्ड्स में लिखूं जिससे कि थोड़ा नहीं, बेटर तो और वही लोगों जो को हेडिंग समझ है ना, में आए। हेडिंग हमेशा हम्म। ऐसा होना चाहिए कि मैं आगे रीड करूँ क्या है। अभी ये तो इसका हेडिंग था, कंपनी न्यूज़पेपर का हेडिंग है, वो नहीं लिखना है तुमको। तो फिर मैं भी लिख सकता हम्म। हूँ, तुमको क्यों बाहर करूंगा। तुम मुझे बताओ कि स्टार्टिंग में ही क्या पढ़ना चाहिए, तो ये हेडिंग होना चाहिए। तो इन जून अच्छा अच्छा। का, इन जून का हमने लिखता है, क्या लगता है, हम्म। एफएमसीजी ग्रोथ, एफएमसीजी वैल्यू, सॉरी, अर्बन एफएमसीजी, एफएमसीजी सेल्स ग्रू फास्टर इन अर्बन, अर्बन तो कितना, ऐसा लिख देते हैं ब्रैकेट में 7.7%, देन रूरल एरियाज विच इज 7.1%। ओके ओके। एक ही हुआ ना, बात तो एक ही हुई ना, यस बताओ सर, यस। ना तुम। अच्छा, अभी क्यों हुआ ये, मतलब सर फर्स्ट, उसका रीजन बिकॉज ऑफ द सर बूस्ट इन ब्रांडेड इसेंशियल, और सर हाँ कमोडिटीज जो ब्रांडेड कमोडिटीज और पर्सनल केयर थे उनका बूस्ट हुआ सर। और दूसरा रीजन था इंटरेस्ट रिडक्शन जो हो गया, और टैक्स कट जो बेनिफिट मिला अर्बन एरियाज में, वो हेल्प किया इनको बूस्ट करने में सर। हाँ, तो वो हेडिंग ही तुम्हारा हो गया तो फिर हो जाएगा ना। एफएमसीजी वैल्यू ग्रोस grew faster in urban area 7.1%, then in rural area 7.1% due to सर sales, बट strong जो sales in branded commodities, personal care and dairy. Okay. अभी इसमें क्यों ग्रोथ हुआ है, तो सर द अर्बन वाज इनिशियली बेनिफिट बिकॉज ऑफ द टैक्स कट एंड रिडक्शन। ठीक है, क्योंकि तुम क्या बात कर रहे, डेटा इसका है ना, डेटा इसका है क्या, डेटा टैक्स कट का डेटा है, इंटरेस्ट रेट का डेटा है, इसमें तो नहीं है। हम्म हम्म है उसका भी डेटा, ऑब्वियसली उसका भी डेटा है, बट अभी न्यूज में नहीं था। तो क्या हुआ है, तुम जब मतलब सर एफएमसीजी आज, जैसे मैंने आज ये न्यूज पढ़ा ही नहीं होता, हम्म हम्म तो सर एफएमसीजी आज ग्रू फास्टर देन अर्बन एरियाज, तो अर्बन वाज 7.7%, whereas rural was only 7.771% ड्यू टू सर स्ट्रॉन्ग ब्रांडेड कमोडिटीज, पर्सनल केयर एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। हम्म। ये हो गया ना, तो ये सब इतना सब लिखने की क्या जरूरत है, फिर लिख दो ये सब क्यों हुआ है। ये सब जो इधर आएगा स्ट्रॉन्ग, इतना कितना तक नहीं, स्ट्रॉन्ग सेल्स ड्यू टू स्ट्रॉन्ग सेल्स इन ब्रांडेड कमोडिटीज, पर्सनल केयर एंड डेयरी। हो गया ये तुम्हारा, इधर आ गया, हो गया ना पूरा हेडिंग में तुम्हारा पूरा न्यूज, 1.5 लाइन में पूरा न्यूज आ गया। तुमने 4 लाइन लिखे है वही न्यूज के लिए, बताना तो इतना ही था ना तुमको, यस सर, यस सर। है ना। फिर क्या हुआ, फिर लिख सकते हो तुम, ठीक है, हाँ फिर ये पॉइंटर डाल सकते हो। तो यूजुअली ये भी होता है कि अर्बन इनिशियली सॉ टैक्स कट जो अभी कम हुआ है, एंड इंटरेस्ट रेट डिडक्शन, चेंज इन मॉनेटरी पॉलिसी विच लेड टू इंक्रीमेंट इन, तो यहाँ पे तुम डेटा डाल सकते हो, चेंज इन मॉनेटरी पॉलिसी मतलब कितना था, अभी रेपो रेट कम हो गया है, फिर इंटरेस्ट रेट कितना, ऑब्वियसली रेपो रेट कम हो गया, उसके लिए इंटरेस्ट रेट कम हो गया है, और ये फिर सर अब जैसे तुम्हारा जो मेरा हेडिंग था उसमें जैसे एक इम्पोर्टेंट जो आपने एडिट किया वो फर्स्ट टाइम सिक्स क्वार्टर में फर्स्ट टाइम हुआ, तो वो लिखना या शो करना इज नॉट नेसेसरी। तो यहाँ पे डाल दो फर्स्ट टाइम इन 6 क्वार्टर्स, वो एज अ क्योंकि पार्ट सर ऑफ हेडिंग मत उसको डालो। ये भी तो सामने वाले को ये भी तो पता चलना हाँ, चाहिए लाइक कि कितने कब से हुआ है या कितने टाइम हाँ, के बाद हुआ है। यहाँ पे ऐसा ऐसा लिख रहे हो, अच्छा अच्छा। फर्स्ट टाइम सेल्स ग्रू फास्टर, एफएमई सेल्स ग्रू फास्टर फर्स्ट टाइम इन 6 क्वार्टर्स इन अर्बन एरिया 7.1%, रूरल एरिया 7.1% ड्यू टू स्ट्रॉन्ग सेल्स इन ब्रांडेड कम्युनिटी है। हो गया ये तुम्हारा आ गया। तो अब इसमें क्या हुआ था, ब्रांडेड कमोडिटी सर्च, सेल्स इन द सेगमेंट रोज 23%, तो ये भी इसका पार्ट हो गया। तो ये तुमने अभी और डेटा पॉइंट्स दिया इसके कि क्या क्या हुआ ब्रांडेड कमोडिटी में, क्या हुआ था ब्रांडेड कमोडिटी सर्च। तो ये तो नीचे आ जाएगा फिर वापस, क्योंकि ब्रांडेड का भी तुमने भी ब्रांडेड की बात की है ना वहाँ पे, तो हम्म ब्रांडेड का डेटा है पहले, सर्च हम्म सेल सेगमेंट था, ये सब क्यों हुआ है, ये सब हुआ है बिकॉज अर्बन सॉ ग्रोथ एंड टैक्स बेनिफिट, टैक्स कट, ये सब क्यों ग्रो हुआ है, क्योंकि अर्बन में टैक्स बेनिफिट हुआ। यस। होंगे ना, इतना ही था न्यूज, ये सब तो ठीक था, ये सब ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं लिखते द प्रीवियस ईयर, हम लिखते हैं इन ईयर ऑन ईयर, द प्रीवियस क्वार्टर से, ऐसा वो लोग ने लिखा है, हम क्या हाँ लिखते हैं, हाँ हाँ। इन क्यू Q1 FY24, FY25,
अर्बन वैल्यू वाज 5.1 while rural was, इधर कैसे लिखा है Q1, अभी Q1 Q4 लिखा है ना यहाँ पे, तो इधर भी Q1 है, Yes, ऐसा sir, नहीं yes, कर sir. प्रीवियस, और हमको ज्यादा बढ़ाना नहीं होता है न्यूज, Okay, okay, okay. ठीक है। या फिर अर्बन ग्रोथ वॉस, नहीं ठीक है ठीक, हो गया, इतना ही था, तो न्यूज न्यूज इतना ही था तुम्हारा, Yes, sir, yes, sir. तो तुमने इतना कुछ बोला है, था तो इतना ही, तो इतना मतलब लिखा हाँ क्यों था? सर, मतलब ऐसा होता है ना समटाइम्स कि मतलब मतलब मैं अपना समझ रहा हूँ कि जैसे सपोज करो कि कोई और कुछ और न्यूज़ पढ़ा है और वो अगर डिटेल में बताता है तो मुझे ज्यादा समझ में आता है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं जो पढ़ता हूँ मैं हाँ, सोचता हूँ कि और डिटेल में बताऊं जिससे सामने वालों को थोड़ा और इजी वे में समझ में आए। तो डिटेल में बताना है तो डिटेल में तुमको ये बताना, टैक्स कट कितना हुआ, इंटरेस्ट रेट कितना हुआ, ये बताओ, फिर डिटेल में हाँ। बताना है। ओके ओके ओके। रीजन ऑलवेज विद डेटा पॉइंट्स, तुम सिर्फ यस। रीजन बताते जाओगे तो तुम लोग, तो फिर वो एक हम्म। ये हो गया, वो स्टोरी बता रहे हो तुम, स्टोरी सुना यस रहे सर, यस सर। हो। जब तक डेटा और वो सिंक नहीं होते एक साथ, तो सिर्फ बात हम्म। नहीं करनी है, डेटा पॉइंट्स भी बात करनी है। यस सर, यस सर। तुमने बताया उतना ही है, तुमने ओवरऑल जो बताया वो 1 मिनट में उतना ही बताया जो मैंने लिखा है, यस सर, तो यस सर। इसको तुम बात करते एलाबोरेट कर दो ना, बात करते करते थोड़ा, जैसे हम बात करते हैं वैसे एलाबोरेट कर दो इसको। हम्म। तो मैं तो वही देखो, मैं क्या देखने वाला, डेटा पॉइंट ही देखना, तुम जो बोल रहे हो मैं सिर्फ वो देखूंगा, अरे ग्रोथ हुआ है 7.7% किधर दिख रहा है, फिर यहाँ पे ब्रांडेड, तुमने बोला ब्रांडेड कमोडिटीज पर्सनल केयर एंड डेयरी को भी हाईलाइट कर देना, कि हाँ यस सर। तुमको दिख रहा है कि हाँ ये तुम बात कर रहे हो ब्रांडेड कमोडिटीज पर्सनल के, इधर लिखा है, तो वो सब चीजें ऐसा ध्यान होनी चाहिए कि जब मैं देख रहा हूँ तुम्हारे न्यूज, तो समझना चाहिए हाँ क्या बात कर रहा है ये, यस सर। ठीक है। तो ये इसी के Sir, लिए, सॉरी। sir, if we clearly see in this news, actually, the rural segment में जो growth है वो कम हो गया है हाँ, compared to previous quarter. करेक्ट करेक्ट, हाँ हाँ वो भी एक है, करेक्ट, इसका ग्रोथ कम हो गया, 11.7 था, यहाँ पे 11% था, हाँ। वो हैज डिक्लाइन, Yes. रूरल हैज डिक्लाइन। तो बट मेजरली द न्यूज वाज अर्बन इज ग्रोइंग, रूरल तो ठीक है, Yes. रूरल वैसे भी छोटा ही पार्ट करता है ना, हाँ इफ यू कल टॉक अबाउट, हाँ सर, कल भी वो हमने तो देखा था जो mainly मैंने it is कवर urban किया only. था, वो डाबर वाला जो था वो भी एफएमसीजी का, हाँ, उसमें भी क्या था कि रूरल डाउन जा रहा था, मतलब डिक्लाइन हुए थे, और अर्बन का सेक्टर जो है वो बूस्ट पे आया था। वैल्यू टर्म्स में है तो इट इज फाइन, वैल्यू टर्म्स वो है, वॉल्यूम ग्रोथ नहीं डिक्लाइन हो रहा है, इट इज अ वैल्यू व्हिच इज डिक्लाइनिंग, हम्म। सर इन्फ्लेशन वो कम हुआ ना, इन्फ्लेशन कम हुआ ना, यस सर, यस सर। हाँ वो भी. अब इन्फ्लेशन का तो ऑब्वियसली इट इज, वैल्यू टर्म्स में डिक्लाइन होगा, बट वॉल्यूम टर्म्स इज ग्रोइंग। अर्बन इज ग्रोइंग क्यों, अर्बन ऑब्वियसली ब्रांडेड कमोडिटीज से ही ग्रो हो रहा है, वो वॉल्यूम्स टर्म्स पे ग्रो नहीं हो रहा है। यस तो अभी सर, लिखा यस भी सर। है, एक आर्टिकल में लिखा भी है कि वॉल्यूम्स की बात नहीं किया वो लोग ने, आई थिंक ये पेज पे लिखा है, 7 पेज पे, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूम टर्म्स, दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट द वैल्यू टर्म्स, एंड वैल्यू टर्म्स में वैल्यू। एग्जैक्टली वी कैन से कि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के वैल्यू ऑब्वियसली ज्यादा ही होते हैं। यस सर। ओके, सर राधिका, सर हाँ था सर मैं बोलने वाली थी कि 7 पेज पे है कि ना, ये डेटा पॉइंट नहीं है लेकिन ऐसा लिखा है कि डिस्पाइट द वैल्यू लीड बाय अर्बन मार्केट्स, रूरल कंजम्पशन रिमेन स्ट्रांग। मेन स्ट्रॉन्ग, हाँ वॉल्यूम हाँ है ना। स्ट्रॉन्ग, यस यस। सर। यस, अब वो सर जैसा आपने बोला ना, वो वॉल्यूम में कम नहीं हो रहा ना, वॉल्यूम कंजम्पशन हाई है। कंजम्पशन और है, इन द टर्म ऑफ वैल्यू, जैसे कि ब्रांडेड है तो ब्रांडेड में एक्सपेंसिव होंगे तो खर्चे तो होंगे ही वो, करेक्ट, तो उसके वजह से वो एज अ वैल्यू टर्म में इंक्रीमेंट हो रहा है। यस। नहीं वो ये बोल रहा था कि अर्बन, रूरल बोला कि रूरल डिक्लाइन हुआ ना, तो रूरल डिक्लाइन नहीं हुआ है, वॉल्यूम टर्म्स इज स्ट्रॉन्ग, वैल्यू टर्म्स में हाँ डिक्लाइन हुआ है, हाँ हाँ। दैट इज फाइन बिकॉज इन्फ्लेशन कम हुआ है, तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड कि वैल्यू टर्म्स में रूरल थोड़ा कम होगा, बट एज राधिका सेड कि रूरल का डिमांड भी स्ट्रांग है, गोदरेज नहीं बोला है कि डिमांड है स्ट्रांग। राधिका, योर न्यूज ऑन एफएमसीजी, वो क्विक कॉमर्स वाला, यस सर। हाँ, So, good morning, everyone. So, to start with today's news, India's quick commerce market is expected to grow at a CAGR of 46.2% to 2 trillion by FY28. Currently, it is valued at 640 billion in FY25. So, mostly this growth is going to come from the consumer preference for instant delivery, expansion into the local markets, and better accessibility in the tier 2 cities.
Also, to talk about historical growth, the sector grew at a CAGR of 142% between FY22 and 25. So this rise was supported by the changing buyer behavior, increased digital penetration, and the increase in the number of dark stores. As dark stores are the key for your 10 to 30-minute deliveries in the urban areas. So to talk about dark stores count have increased 71% year on year to 3,000 in FY25. This is due to the aggressive expansion by the key players such as TCPL, Dabur, HUL. So these micro warehouses are actually the reason for the faster delivery and faster delivery. So to talk about the average revenue per store, it has increased 25% year on year in FY25, and this is due to the improvement in the per unit level profitability. Also, the to add on, the QCOM players are actually currently not only scaling but are also focusing on the operational efficiency. So this shows a sign of a mature market, if which executed properly will have a sustainable growth. Like, it is growing by 42%. सर 46.2% प्रोजेक्टेड है और अभी तक लास्ट 3 इयर्स में 142% से ग्रो हुआ है. और अभी क्या रीजन क्या था? स्पेसिफिक व्हाट वाज द रीजन? कुछ सर डार्क स्टोर इंप्रूवमेंट वही था, हाँ सर डिलीवरी एक्सपेंशन. हाँ, हाँ हिस्टोरिकल ग्रोथ के लिए तो वही था कि इंक्रीज इन डार्क स्टोर्स मेनली एंड प्रोजेक्ट के लिए मोस्टली एक्सपेंशन इन द लोकल मार्केट्स एंड सर एक्सेसिबिलिटी इन टायर 2 एंड 3 सिटीज. accessibility in tier 2 tier 3 cities. हाँ, ये एक था. One was this that in the tier 2 tier 3 cities में this is increasing, as I rightly mentioned, digital penetration and dark stores are increasing in tier 2. उस दिन भी हम बोल रहे थे कि majorly demand is coming from tier 2 and tier 3 cities. Maybe ये beauty products का भी yes sir because of influence, ये social media influence ही है, and obviously minimum support price, farmers income increasing. So ये सब चीजें है ना, it is linked to this all कि उनका पैसा इनकम बढ़ रहा है, तभी ये सब डिमांड बढ़ रहा है ये सब चीजों में. सर हाँ सर वही कल का न्यूज की खरीफ का सोइंग बढ़ खरीफ रहा का है तो sowing बढ़ रहा है. हाँ, फार्मर्स का इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा. कंजम्पशन बढ़ेगा. And पहला कंजम्पशन ही एफएमसीजी, मतलब यहाँ से आता है कि दिस इज, यहाँ पे तुम चीजें लोन पे नहीं लेते तुम, इट इज एस्पिरेशनल बाइंग. हाँ आज वो यस सर आज इधर अधिका पढ़ा तुमने? आज वो थर्ड वेव कॉफी का भी था. हाँ सर वो पढ़ा मैंने कि थर्ड वेव कॉफी इज मतलब वो अपना रेवेन्यू डबल करने का सोच रहा है FY27 तक. करेक्ट. हाँ It has तो said that 40%, sorry, 90% stores are in profitability. यस Profit वो, हाँ. और ऊपर से फिर सर एकदम ऑनेस्टली टाटा स्टारबक्स जो फिलहाल डिक्लाइन में है थोड़ा, फिर उनके लिए और मुश्किल हो जाएगा हाँ, क्योंकि कॉफी प्राइसेस ऑल टाइम हाई है अभी. करेक्ट. कैन मैंने कुछ पढ़ा वहां पे कि वो लोग ने लिखा था कि दे आर कमिंग अप विद लो कैलोरी शुगर, ऐसा भी कुछ किया. आई हैव हाँ नेवर बीन टू थर्ड वेव कॉफी. हाँ सर वो एक न्यू वेरिएंट आया है उन लोग के इसमें सर जो शुगर फ्री है उनके लिए. And they're saying that people are millennials and Gen Zs are preferring those products जो Starbucks के पास आई थिंक नहीं है. यस सर स्टारबक्स का नहीं है कोई ऐसा लो कैलोरी या फिर ऐसा कोई. कैलोरी वाला, हाँ. सर वही फिर जो जैसा अभी करंट यूथ हेल्थ कॉन्शियस हो रहा है ज्यादा तो वो ट्रेंड पे जा रहे हैं वो लोग. करेक्ट. एंड हम्म फ्रॉम योर न्यूज, ये तुमने बोला है डिजिटल ई कॉमर्स का, तो उसमें किसको बेनिफिट होगा? विल बेनिफिट? हेलो सर. हाँ, हु विल बेनिफिट फ्रॉम दिस? सर अगर ये क्विक कॉमर्स का सर जो क्विक कॉमर्स में है जोमेटो है अपना स्विगी है देन सर अमेजोन इंडिया दो अपने इंडियन मार्केट में लिस्टेड नहीं है वो लोग ने भी एक न्यूज था कि 10 मिनट डिलीवरी स्टार्ट कर दिया है. या दिस वन, हाँ, मैं उसी पे आ हाँ रहा ये हाँ था. वही. Amazon launches 10-minute delivery. Guys, they have started 10-minute delivery. Bangalore था, next they have started with Delhi. तो ना कंपटीशन इज इंटेंसिफाइंग. मैंने ये पहले भी बोला था कि मैंने जोमेटो और स्विगी से एग्जिट कर लिया है बिकॉज आई डोंट वांट टू प्ले ऑन द कंपटीशन पार्ट. सब बढ़ रहे हैं तो अननेसेसरी देयर विल बी अ कंपटीशन फ्रॉम दिस बिकॉज अभी नाउ वी विल एज एन इंडियन बायर्स, हम सब ऐप पे चेक करेंगे कि इधर क्या फ्री मिलता है या किधर क्या सस्ता मिलता है. Yes, sir. एंड बिग बास्केट भी आ रहा है इसमें, तो अमेजोन का था, बिग बास्केट भी है इसमें. तो बिग यस सर बास्केट का तो वो टाटा नियो का जो कार्ड है, आई थिंक यू गेट सम पॉइंट्स एंड 10% ऑफ भी मिलता है उस पे, ऐसा भी कुछ है.
यू नो वन वन इम्पोर्टेंट, मैं ना पहले जोमेटो बहुत यूज करने का, नाउ आई हैव स्टॉप्ड यूजिंग जोमेटो। दैट इज द रीजन। मैंने ना स्विगी का एक को ब्रांडेड कार्ड है, विच इज ऑफ एचडीएफसी बैंक, अगर तुमको पता हो तो। बिग यस सर। बास्केट का, टाटा नियो का है। ठीक है, अमेजॉन प्राइम का अगर तुम्हारे पास है सब्सक्रिप्शन, तो उस पे कुछ डिलीवरी फ्री है, ऐसा कुछ है या इस पे। अमेजॉन के जो है ना, इस पे अभी मैंने पढ़ रहा था ये। बट व्हेन इट कम्स अबाउट जोमेटो एंड ब्लिंकिट, वैसा कुछ नहीं है जोमेटो और ब्लिंकिट पे। एक कार्ड था एक्सिस का, विच वाज हैविंग फ्री डिलीवरी, 10% ऑफ फॉर डिलीवरीज ऑन जोमेटो, बट वो ब्लिंकिट पे नहीं चलता है। एंड आजकल अभी वो इन हाउस डाइनिंग में उन्होंने डिस्ट्रिक्ट ऐप खोला है, तो डिस्ट्रिक्ट पे भी नहीं चलता है वो। तो ना, ये न्यूज के वजह से मैंने तो मतलब ये सब चीजें हुए, मैंने खास कार्ड लिया था बिकॉज मैं जोमेटो से ही मंगाने का। बट अभी आई हैव स्टॉप्ड ऑर्डरिंग फ्रॉम जोमेटो, एंड द पॉइंट आई हैव स्टॉप्ड ऑर्डरिंग फ्रॉम जोमेटो, मैंने मेरे सब शेयर्स बेच दिए। मतलब कि अभी मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, मुझे ये चाहिए नहीं। बिकॉज मुझे अभी ध्यान में नहीं है कि, क्योंकि ये देखा था मैंने कि कार्ड्स पे ऑफर हो रहे हैं, एंड क्रेडिट कार्ड का आज भी एक न्यूज था कि क्रेडिट कार्ड इंडिया में 3x बढ़ गया है इन द लास्ट, फ्रॉम कोविड के बाद। सो ये एक मेरा थॉट प्रोसेस है ना, दिस वाज लाइक चैनल चेक्स और पर्सनल बातें हैं जो मैं कभी कभी एनालिसिस में यूज करता हूँ, कि मुझे अभी जोमेटो नहीं चाहिए, फिर वो यहाँ पे 200 का 2000 भी हो जाए, आई डोंट केयर। या फिर आई विल से मेरा एनालिसिस रॉन्ग था। तो जो भी है, मैंने जो किया, मैंने खुद के असम्पशंस पे किया, बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग द प्रोडक्ट। मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे भी फ्रेंड्स है, उस दिन उसने उसने भी लिया स्विगी का कार्ड, कि ऋषभ दिस इज द बेस्ट वन, कि 10% ऑफ मिलता है। तो नाउ यू नो, जेंजीज एंड मिलियनर्स, इवन आई डोंट, मतलब हम लोग हार्डली नीचे जाते हैं कुछ ग्रोसरीज लेने को, इट्स ऑल ऑनलाइन, मतलब हम सब ऑनलाइन ही मंगाते हैं, प्लस वी गेट अ 10% ऑफ ऑन द स्विगी का जो कार्ड है उस पे। वैसे ही बिग बास्केट का भी एक कार्ड है जो टाटा नियो का, इफ यू हैव दैट क्रेडिट कार्ड, तो तुमको उस पे सस्ता मिलता है, कुछ 5-10% ऑफ मिलता है। बट जोमेटो को ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जो को ब्रांडेड है, जहाँ पे ब्लिंकिट पे तुमको ऑफ मिलता है, या फिर ना जोमेटो के ऑर्डरिंग पे तुमको ऑफ मिलता है। इवन इफ यू गो फॉर इन डाइन, यू नो, वो डाइन आउट या फिर डाइनिंग के लिए जाते हो, तो वहां पे भी कुछ ऑफ नहीं मिलता है जोमेटो पे। ये मैंने नोटिस किया ओवर द पीरियड। तो ठीक है, जो भी ग्रोथ हो रहा है, आई माइट बी रॉन्ग, ये तो मेरा पर्सनल एनालिसिस है। बट आई हैव एंटायर स्टेक, मेरा जितना भी मेरे पोर्टफोलियो में था स्टॉक जोमेटो का, मैंने सब बेच दिया। आई सेड आई डोंट वांट इट, वो फिर यहाँ से कितना भी हो जाए, मैं ट्रैक नहीं कर रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए। एंड ऊपर से न्यूज आ ही रहे, अमेजॉन कंपीटिंग, बिग बास्केट कंपीटिंग। एंड हम जो बात कर रहे हैं ग्रोथ की, ओके, जोमेटो का फूड बिजनेस इज प्रॉफिटेबल बिजनेस, बट उसका डार्क स्टोर इज मेकिंग लॉसेस, ये हमने पहले भी पढ़ा था। So for that even Rapido is coming up, अगर पता होगा तो। Rapido ने बोला था कि they were come up with वो subscription plan, if you remember। Yes, sir. subscription plan है तो, see the competition is way more intensifying, and Zomato का जो profitable business था उसमें अभी competition आएगा। I'm not sure कि कितना scale up होगा, but on a cautious note I will stay away from this stocks। सर, सब एक और बात थी, अभी जैसे मैंने आज का न्यूज देखा मैंने कि दीपेंद्र गोयल बाइज लग्जरी अपार्टमेंट वर्थ 52.3 करोड़ हाँ, इन गुरुग्राम। सर, तो इसका क्या इम्पैक्ट हो नहीं सकता है, कुछ लाइक, नहीं, कुछ नहीं, वो ऐसे ही क्योंकि सर अब है। सपोज वो भी जो अमाउंट में वो इन्वेस्ट कर रहा है या लग्जरी अपार्टमेंट या और जो भी चीजें खरीद रहा है, वो तो एक इक्विटी, मतलब हमारे इक्विटी से ही तो कैसे, नहीं खरीद रहा नहीं, होगा। खुद का पैसा है, आप अपने इक्विटी से कैसे खरीदेगा? ओके, कंपनी ओके, की फाइल थोड़ी कर सकते हो। ओके, ओके, वो खुद का पैसा होता है, वो पर्सनल चॉइस है, वो ऐसे ही आता है, ओके, ऐसे ही न्यूज। तो उसमें न्यूज जोमेटो का नहीं, उसमें न्यूज इसका है कि लग्जरी का सेल्स हो रहा है, वो न्यूज है उसमें। उसमें ये नहीं कि दीपेंद्र गोयल ने बाय किया है, लाइक वही हम डिफाइन कर ही रहे हैं कि लग्जरी। उस दिन भी आया था, कैमिलास में लिया ना उसने, डीएलएफ में। एएलएफ में, उस यस दिन सर, वो था यस, प्रॉपर्टीज वहां पे, है ना, हम बात कर ही रहे थे 25 करोड़ का और 9 करोड़ का। सस्ता है यस, वो, है ना, हर्ष है, सस्ता है वो सिर्फ 50,000 स्क्वायर फुट का ही है, मुंबई में इट इज लाइक 1-2 लाख स्क्वायर फुट। ठीक है। Sir, can I add on this credit card thing? यस। So sir, जनरली ना जोमेटो का आरबीएल बैंक के साथ टाई अप है अभी के लिए। मैं अभी चेक कर रहा था रिसेंटली, हम्म। तो वो ज्यादा बिकता नहीं है। और अभी मैं एसबीआई कार्ड्स पे थोड़ा स्टडी कर रहा था ऑन दैट हम्म। बिजनेस, और एसबीआई कार्ड्स पे 5% देता है। बट हाँ, स्विगी का काफी बेटर है उस हिसाब से, हम्म। स्विगी एचडीएफसी बैंक वाला। हाँ, वो डायरेक्ट फ्लैट 10% है, डाइन आउट पे भी मिलता है तुमको, इंस्टामार्ट पे भी मिलता है। एंड जोमेटो का ना ब्लिंकिट पे नहीं मिलता है, इट इज ओनली ऑन जोमेटो ऐप। तो एक्सेस का भी है, मेरे पास है वो कार्ड्स। एक्सेस, एयरटेल का एक्सेस कार्ड है, उस पे मिलता है जोमेटो 10% ऑफ इफ यू ऑर्डर।
राइट राइट। पर वो डिस्ट्रिक्ट पे नहीं है, ना ही तुम्हारे वो इस पे है, ब्लिंकिट पे है। तो ये एक मैंने ड्रॉबैक ऑब्जर्व किया उसका, वो कार्ड का। तो मैंने वो कार्ड हाँ यूज करना भी लास्ट बंद कर दिया। हाँ लास्ट 6 मंथ्स से वो सब बंद कर दिया है उस बंद कर दिया जोमेटो ने। जोमेटो ने, हाँ। तो मुझे थोड़ा कंसर्निंग लगता है, मतलब ठीक है, क्योंकि स्विगी को ऑब्वियसली एचडीएफसी कार्ड को कमीशन देना पड़ेगा, बट सेल्स तो इम्प्रूव हो रहे हैं। यस सर। Okay. अच्छा, सेजल, एनीथिंग ऑन को तुम्हारा एसी वाला, सेजल? सेजल, यू देयर? सत्यजीत, सत्यजीत, सर हीरो हीरो की बात करो। so good morning everyone. Today there was news regarding Hero MotoCorp in one decade from FY 2015 to FY 25. There has been a decline of market share from 40% to 29%. And it is Honda is closing the gap with market share of 27%. So this is the concern regarding the Hero MotoCorp. And it is slow, sales has been slowed down from 9 lakh units in 10 years. The sales has been dropped 13% from 66 lakhs to 57 lakh units in one decade. And in same decade, TVS have increased sales from 88%, and Bajaj sales has been increased 44.4%. Which is a very huge sharp gain in 670 billion two-wheeler industry. And the reason for that is scooter segment has failed to deliver the sales around 70%. It's been down 70% from 13.6 lakh units to 3.67 lakh units in FY25 due to huge competition. And in same segment, scooter segment, other companies have सत्यजीत, drastically सत्यजीत, increased. थोड़ा, सत्यजीत तुम बहुत हड़बड़ा रहे हो, थोड़ा इजीली बोलो ना, आराम या से। फिर हाँ क्यों ना, सर। फ्लुएंसी नहीं समझ रहे, अभी तुम इतने दिन से बात कर रहे हो तो थोड़ा फ्लुएंसी नहीं आ रहा है, तुम अटक अटक के बात कर रहे हो। पहले तो दिमाग में लो कि तुमको बोलना क्या है, 3 पॉइंट क्या बोलना है तुमको, यहाँ से तुम्हारे जो है थ्री। तुम्हारे न्यूज से ही। हाँ। तुम्हारे ऐसे यस कौन से यस। 3 पॉइंट है जो तुमको सिर्फ बतानी है मुझे, जो तुमको याद रखनी है? So the sales has been declined from the one decade from 40% to 29%. Like market share has declined, which is a huge concern for किसका Hero नहीं, पहला तो MotoCorp, sir. सर, हीरोज टू व्हीलर मार्केट इज डिक्लाइनिंग फ्रॉम लास्ट 1 डेकेड, करेक्ट? Yes, ये sir. ना, ये है ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो सर, हीरोज टू व्हीलर्स मार्केट हैज बीन डिक्लाइनिंग फ्रॉम द लास्ट 1 डेकेड, which has reached to 29% market share from earlier 40%, correct? Yes, sir. Correct. And what has happened in this, Honda has closed the gap with 27% market share. अभी इसका Honda का पहले कितना था? सर पहले था 20% था सर, 18 से 20% था. Closing the gap, तो ना Honda has, no, Honda's share has reached 27% from the previous 20%, ठीक है? ये तुम्हारा हेडिंग हो गया। ये बताया तुमको मुझे मेजरली हेडिंग क्या था, कि तुमने जब ये न्यूज पढ़ा, मैंने भी तुम्हारा जब ये न्यूज पढ़ा, तो मेजरली हेडिंग यही था कि ये क्या हुआ है। तो सर, मार्केट शेयर हीरो का लास्ट डेकेड में कम हुआ है, कितने से? 40 से 29 पे, या 29% हुआ है 40 से। ओके, हाँ, अभी उसके क्या रीजन है कि सर मोटरसाइकिल डिक्लाइन हुआ रीजंस है? है हाँ, अलग अलग सेगमेंट के रीजंस है. लाइक हाँ, यूजुअली, हाँ, इफ यू सी स्कूटर सेगमेंट हैज बीन कोलैप्स्ड टू पहला मोटर 72% लिखा तुमने, डिक्लाइन. मोटरसाइकिल है ना, स्कूटर पे क्यों आ रहे हो? ओके ओके, तो लिखा है ना तुमने मोटरसाइकिल यहाँ पे? हाँ, लाइक motorcycle alone has slipped to 67% to 47 to 48% till now. Market share मोटरसाइकिल हैज डिक्लाइन टू 48% फ्रॉम 67% इन 67%. 2014। कि जो चीज बोलने हैं वो पहले बोलने, लास्ट इंपॉर्टेंट क्या डेटा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है?
So 48% is 48 important पर है ना, because it's down. अभी Yes. 40 है ना, तो हीरो मोटो का स्लैब्स हैव स्लिप्ड टू 48% फ्रॉम 67% इन 2014। अभी यूजुअली हम बेसिस पॉइंट में बोलते हैं, पर ये बहुत बड़ा बेसिस पॉइंट हो गया है, इतना ज्यादा गिर गया है। ठीक है, अभी क्यों हुआ ये Yes, ड्रॉप? yes. दिस जस्ट ऑफ द शार्प एंड चेंजिंग इंडस्ट्री चेंजिंग। Yes, sir. ये एक हो गया, ठीक है, ये एक हो गया कि मोटर सेल्स में, अभी मोटर सेल्स का, मोटर बाइक का तुमने लिखा है क्या? हाँ, मोटर बाइक का तुमने यहाँ पे लिखा है ना, बाइक सेगमेंट क्यों डिक्लाइन हुआ है? Because there's a shift in premium segment bike and the over dependence of this Hero is to on the commuter bikes, sir. Because of that, there's been a market shift which they are not able to cope up. करेक्ट, तो ये होता है ना, पहला तुम बता रहे हो तभी, तुम क्या बीच बीच में सब बता रहे हो, ऐसा हो रहा है कि तो अभी इधर इधर ही वो न्यूज आना After चाहिए ना तुम्हारा। motorcycle, I came to sales. That's why. हाँ, तो सेल्स पे आ रहे हो क्योंकि तुम बात बता रहे हो, बट वो हड़बड़ा रहे हो तुम ना। अभी अभी कैसे कॉन्फिडेंटली बोला, क्यों हुआ है? तुमको पता था तुमको क्या बोलना है, वो तुमने लिखा भी है कि कंप्यूटर के मेजरली उसका ओवर फोकस था कंप्यूटर बाइक पे, और इंडस्ट्री प्रीमियम बाइक पे चेंज हो रहा है। बट तुमने जो यहाँ पे लिखा है, द ड्रॉप इज शार्प एंड शोज दैट इंडस्ट्री इज चेंजिंग। अभी ये न्यूज पे, ये आर्टिकल पे, अगर मैं हीरो जानता ही नहीं, कभी मैंने देखा ही नहीं हो हीरो के बारे में, तो मुझे क्या समझेगा क्या बात कर रहे हो तुम? करेक्ट। Yes, sir. तो यहाँ पे तुमने बोला है कि इंडस्ट्री इज चेंजिंग, तो वहां पे बोला कि क्या चेंज हुआ इंडस्ट्री में। सर, हीरो वाज फोकस ऑन कम्यूटर्स बाइक एंड द फोकस हैज शिफ्टेड टू प्रीमियम बाइक, एंड हीरो उसमें था ही नहीं, उसका पोजीशन था ही नहीं उसमें। ये रीजन के पैसे हो गया, तो उसके लिए क्या कर रहा है वो अभी? हाँ, तो वही हैव नॉट येट, उसके जो प्रीमियम बाइक्स थे दैट हैव नॉट येट मीनिंगफुली स्केल्ड अप। तो ये जो पैराग्राफ है, ये जो दो पैराग्राफ है, वो पैराग्राफ इधर आना चाहिए तुम्हारा। मतलब कि सेल्स डाउन पे चले गए, हो गया, तुमने बता दिया ना मार्केट अभी सेल्स का क्या करना है। तुम परसेंटेज डिक्लाइन हो गया है तो समझ आया ना, मैं भी सेल्स का क्या करूं मैं? व्हाई इज दिस आंसर अगेन? बोल दिया ना यहाँ पे तुमने, सेल्स डिक्लाइन हुआ। चाहिए तो लास्ट में लिख दो, ये डेटा पॉइंट है, इसमें कुछ है क्या बताने लायक? Yes, just like Bajaj and TVS has been the aggressive rise in that segment. Which segment they have dropped तो sales. इज दिस आर्टिकल, इज दिस पैराग्राफ रिलेटेड टू दिस? कुछ है रिलेटेड? No, so that is market share. This is sales. हाँ, तो वही था ना, तुमने स्टार्टिंग ही से मार्केट शेयर से की, तो फिर वापस सेल्स पे क्यों आ रहे हो अभी? तो बताओ ना क्या हुआ है, उसके रीजन से बता मुझे। ये 40 से 29 क्यों हुआ है? तो मोटरसाइकिल डिक्लाइन हो, तो मोटरसाइकिल डिक्लाइन क्यों हुआ है? कि उसका फोकस कम्यूटिंग पे था, प्रीमियम पे नहीं था। फिर स्कूटर्स भी कोलैप्स हुए, सर ये तो हुआ ही है, उसके साथ स्कूटर्स भी कोलैप्स हुए। स्कूटर्स क्यों कोलैप्स हुए? स्कूटर्स तो 72% डिक्लाइन हो गया। Because of slow entry into EV segments and the huge competition from Honda and होंडा, other. हाँ, हो गया, इतना था न्यूज। ये भी लिखा देना चाहिए। अभी देखो, ये सबसे लास्ट जो फर्स्ट चीज बोलना चाहिए, तो मैं सबसे लास्ट लिखे कि ओवर रिलायंस ऑन बजट बाइक्स, इसी के वजह से तो डिक्लाइन हुआ ना ये सेल्स। इतना तुमने न्यूज लिखा है इतना बड़ा, बट अभी वो फ्रेम ही नहीं हो रहा है, तो तुम सिर्फ बात रीड कर रहे हो, ऐसा हो रहा है कि तुम सिर्फ रीड कर रहे हो, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। द पॉइंट यू हैव, हेडिंग जो लिखा है पूरा तुम्हारा न्यूज आर्टिकल उसी पे होना चाहिए, कोई भी भटकना नहीं चाहिए वहां से टॉपिक से। क्योंकि क्या होगा, इतना अच्छा लिखने के बाद भी तुम प्रेजेंट नहीं कर पाओगे, तो फिर फायदा क्या? क्योंकि सामने वाला तुम्हारा सुनने वाला है नहीं, ये याद रखना। ये याद रखना कि वो 1 मिनट से ज्यादा तुम्हारे सुनने वाला है नहीं, एंड उसको बोर लगा तो ही विल स्टार्ट आस्किंग यू डिफरेंट क्वेश्चन, या फिर अननेसेसरली ही विल ट्राई टू आस्क यू इधर क्या हुआ उधर क्या हुआ। तो ये सब एंड में ना, ये सब डेटा पॉइंट है, सब एंड में लिख दो। मोटरसाइकिल डिक्लाइन हुआ है, स्कूटर्स डिक्लाइन हुआ है। स्कूटर्स स्ट्रेट न्यूज है सर, मोटरसाइकिल डिक्लाइन है क्योंकि उनके पास कोई प्रोडक्ट नहीं था, उसका ओवर रिलायंस था। स्कूटर डिक्लाइन हो गया क्योंकि फेल टू माइस्ट्रो एंड प्रेजर दैट fail to compete with Activa, with Honda Activas, and launch of EVs, lack of aggression in EV। इतना ही न्यूज था, एंड ये क्या था प्राइसिंग का? The same price which they are providing for new bikes, it's failing as a competitor, sir. Like the value they are giving, the technology or the styling,
they're getting into better competition. Like Apache is better giving performance or styling, so like that. So Okay. तो ये सब तुम बाद में लिख सकते हो कि इट हैज नथिंग टू डू विथ, ठीक है ये है, बट थोड़ा थियोरटिकल हो गया है कि डेटा पॉइंट्स है नहीं इसमें कुछ, तो हम लोग कि सर ये सब and क्यों the हुआ। brand value also, sir, like mostly Hero is as a CVSC as a commuter bike. So it's not what is attracting the young customers. Because of that, their attraction to Royal Enfield or other competitor. करेक्ट, तो ये तुम्हारा लास्ट में हो गया ना, ये सब डिक्लाइन क्यों हुआ है, Yes, sir. सेल्स डिक्लाइन क्यों हुआ, ये सब डिक्लाइन, तो तुमने उनका कंपनी स्पेसिफिक बोला बराबर, क्या था कि फेल टू कम्पीट एक्टिवा हो गया, फिर मोटरसाइकिल शेयर डिक्लाइन हुआ क्योंकि इंडस्ट्री चेंज हुआ है, और भी जो जो बाकी सेगमेंट में भी डिक्लाइन क्यों हुआ है, इज बिकॉज ऑफ स्टाइलिंग चेंजेस, परफॉर्मेंस एंड जो लोगों को चाहिए था, ये तुम्हारा तो डेमोग्राफी चेंज हुआ ना, ये तो इट हैज नथिंग टू विद कंपनी कि Yes, the लोगों को वैसी demographic गाड़ी change लेनी। also, even though they get with Harley Davidson, still they are not able to cope up with the market. Same तो thing. इतना अच्छा न्यूज लिखा है तुमने, ये पूरा इन्वेस्टमेंट थीसिस हो सकता है पता है तुम्हारा, कैन बी एन एंटायर इन्वेस्टमेंट थीसिस, जस्ट बिकॉज वो तुमने फ्रेम बराबर नहीं किया है। मुझे भी जब तुमने फर्स्ट टाइम बोला तो बोला क्या बात कर रहे हो ये, सिंस आई नो हीरो, ठीक है, देखो अब ये मुझे पता है तो बात अलग थी, अगर मुझे पता ही नहीं होता तो अरे तुम क्या पका रहे हो, ऐसा होता है कि क्या बात कर रहे हो, इधर का उधर सब मिक्स कर रहे हो इधर से उधर, ऐसा होता है। एंड अगर मुझे ज्यादा पता हुआ है तुम ऐसा कुछ बोल रहे हो तो फिर मैं और तुमको ये करूंगा कि अरे यार इसको तो सारी बेसिक चीज भी बताने नहीं आ रही, पेपर पढ़ने नहीं आ रहा है, ऐसा हो रहा है। तो फिर इसको मैं ना, फिर तुमको कितना भी मॉडल बनाना है, तुम क्या करो तुम्हारे मॉडल का, मैं मॉडल के लिए तो मैं लोग हायर कर लूंगा, मॉडल बना तो मॉडल बनाने के लिए थोड़ी रख रहा तुमको। फ्रंट एंड पे लोग इसके लिए रखते हैं कि तुम क्लाइंट से बात कर सको, एंड क्लाइंट से बात करने के लिए पहला तुमको मैनेजमेंट का, सॉरी मैनेजर का ही कॉन्फिडेंस गेन करना होता है कि मैनेजर को अगर तुम बराबर से बता पाओ तो ही वो मैनेजर विल यू नो स्टैंड मेक यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ क्लाइंट। बिकॉज क्रिसिल हो गया, एक्विटी हो गया, ई वैल्यू सर्व हो गया, या जो भी सेल साइड रोल्स हो गया, दिस रोल्स आर ऑल क्लाइंट फेसिंग रोल्स। नोमूरा हो गया इनफैक्ट, कि उनको चाहिए कोई हम बात करे इतने अच्छे से कि कुछ हो जाए, कि जो बोल रहा है सामने वाले को समझे। लिखना तो है ही ऑब्वियसली, काम पहले तो करता है। लिखना है, उसके बाद लिखने के बाद सामने वाले को समझे कि क्या लिखना है। और लिखना ही बोला ना, जैसे तुम बात करते हो वैसे ही लिखना है। तुमने लिखा बहुत अच्छे से, अभी तुमने सब फॉलो किया है, वो हेडिंग फॉलो किया है, डेटा पॉइंट्स फॉलो किया, बट सब इधर उधर है, फॉर्मेट फॉलो नहीं, फॉर्मेट नहीं सॉरी, फ्रेम बराबर से नहीं किया है। बाकी सब कुछ बराबर है, मैं कोई डाउट नहीं कि तुमने बहुत अच्छे से लिखा है ये, जो भी मैंने तुमको बोले है कि न्यूज़लेटर कैसा लिखना चाहिए। बट मेरा ऐसा था कि यार इतना अच्छा लिखने के बाद भी तुम बात क्यों नहीं बराबर कर रहे, ऐसा हो रहा था मुझे। So काम करता बहुत better. थोड़ा हाँ, थोड़ा सा वही बात पे थोड़ा कि कैसा बात कर, फ्लुएंसी कैसे लाए उसमें, जो चीज बोलने एकदम क्रेज बोलना चाहिए, अटकना नहीं चाहिए बीच में कुछ भी। That's it. या सिद्धांत, यू वांट टू ऐड समथिंग सिद्धांत? Yes, sir. I have also written in this article only. हम्म, Means what I am facing difficulties is to that, like you have said, the fluency and the flow of the means article in your own words. So I can write the article in bits and bits like हाँ Satyajit has written, but the time which I am means जो मेरे को ज्यादा टाइम लग रहा है वो है फ्लो पे लाने की, मतलब तो किसके पहला बाद क्या आएगा। तो कैन यू प्लीज वंस चेक माय आर्टिकल तुम मीन्स बोलो ना, हाँ बोलो ना, पढ़ रहा हूँ मैं तुम्हारा, मीन्स बोलो। हाँ तुम बोलो। Yes, so I've written the article in the same like Hero has reduced his means decreased the market share by 29%. Means earlier it was having a market share of around 40% and it has been declined to 29%. हम्म, And the reason behind the major fall is because they are focusing on the bike, means high-end bike, while making a tie-up with Harley Davidson, and they are not focusing on the bike which means on the means their major you means the major part they were selling earlier, like Hero scooters, which is their um, um, key selling products. Like Hero was known for किधर the लिखा है scooter. तुमने, सब लिखा किधर है, तुम जो बोल रहे हो तुमने लिखा किधर है, इसके लिए तुम अटक रहे हो, Okay, समझ रहे sir, हो, means तुमने लिखा okay, नहीं है वो सब जो बोल रहे हो, okay, बोल okay. रहे हो। अभी इसने लिखा था, सत्यजीत ने देखो लिखा था इस पे, तुमने कहाँ से पढ़ा न्यूज़, कौन से आर्टिकल से, कौन से न्यूज़पेपर से पढ़ा?
सर मैंने पढ़ा था, 1 सेकंड सर, सत्यजीत तुमने कहाँ से पढ़ा? फाइनेंशियल एक्सप्रेस से सर पढ़ा था। एक ही पेपर में आता है फिर किसमें? फाइनेंशियल एक्सप्रेस। FA एफएम में था? एफएम में था तो कहाँ पे था, मेरा मिस हो गया। अच्छा मैं नीचे गया ही नहीं, मैं एफएमसीजी का पढ़ रहा था। 6th पेज में, किधर है? 6th पेज, फिफ्थ फिफ्थ पे क्या? 6th 6th। ये सबके पेज अलग अलग होते हैं। हेडिंग क्या है इसका, हेडिंग बताओ। हेडिंग इज सर स्लो टू शिफ्ट गियर्स, हीरो स्ट्रगल्स इन फास्ट चेंजिंग नहीं वो टू नहीं, डब्ल्यू मार्केट। पेज का जो हेडिंग सर बता। पेज नंबर 4 पे, 4 पे न्यूज पेपर का कंपनीज, पेज नंबर 4। हाँ ये रहा, ओके हाँ slow। कंपनीज, यस तो यस इतने यस। फिर इतने और भी चीज लिखे थे तुमने, क्यों नहीं लिखा इतने बड़े आर्टिकल में? तुमने तुम्हारी इतनी कैसी चीज आई सिर्फ? ये भी तो इसकी, ये भी तो था लिखा है यहाँ पे, वो रिलायंस अन बजट बाइक्स, इसके वजह से सेल्स डिक्लाइन हुआ था। ये तो मतलब मैं वही ट्राई कर रहा था कि कहाँ पे कैसे एडजस्ट हो, मतलब फ्लो हाँ पे प्रॉब्लम आता और टाइम काफी ज्यादा पर अभी रहता तुमने था बोला इसमें। तो बराबर बोला ना, तुमने बोला तो बराबर बट लिखा नहीं है तुमने। ओके। है तो वही जो चीजें बोलनी है ना, वो हम्म लिखनी होनी चाहिए, वो लिख तो ही तुमको वो बात करने में आएगा, वरना तो मेरे को भी नहीं आएगा। मेरे को तुम बोलो कि ना ऐसा न्यूज पढ़ा है और बताने बताओ, अचानक से तो नहीं होगा मुझे बताने को, तो हम तो खास लिखनेंगे। मतलब मैंने तो हम्म खास फोन लिया था वो पेन वाला, नोट, जस्ट टू राइट माई नोट्स। मतलब मुझे ना पॉइंटर्स क्या बोलने हैं, क्योंकि जब हम ऑफिस पहुंचने के तो सीधा मीटिंग चालू हो जाने की, तो मीटिंग चले तो पॉइंट्स तो याद रहने थे कि क्या पॉइंट पे बात करनी है मुझे। ट्रू ऐसा सर। था। तो न्यूज तो भेजने का मैं लिख के, बट मुझे पता है कि इसमें से बात क्या करनी है, कौन से पॉइंट पे बात करनी है, तो वो फिर मैं खुद के लैंग्वेज में बात कर सकता हूँ। ऐसा है। हम्म। बट वो पता तो होना चाहिए कि लिखना बोलना क्या, इसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद क्या बोलना है। कि ऐसा अगर ओके। मैं पढ़ूँ इतना बड़ा तो मैं भी नहीं बोल पाऊंगा कि अरे क्या पढ़ा मैंने इसमें। तो वो मुझे फ्रेम करने कौन सी चीज कहाँ पे बोलनी है। तो मैंने जो अभी बोला ना अभी, वो मैं बस खाली जो पॉइंट्स में, तो जो हेडलाइंस है बस हेडलाइंस में अभी आपके सामने खोल के रखा था, हेडलाइंस पढ़ा, मेरे को पढ़ा हुआ था आर्टिकल, तो हम्म। मैं बस आपको एक्सप्लेन करता गया इसके लिए इसमें। मैंने बोला ना वो हाईलाइट्स में कैसे हाईलाइट किए इसने, हाँ, कैसे हाईलाइट किया देखो, कम्यूटर ब्रांड, नॉन एस्पिरेशनल, फिर और रिलायंस ऑन बजट बाइक, इसने कैसे वो हाईलाइट किए। ये कैसा होता है कि ये हम जब बात करते हैं ना तो वो सब वर्ड्स याद याद रखने चाहिए, कितना हो गया था। मतलब कि हीरो का मोटरसाइकिल डिक्लाइन हुआ है, बट कितना डिक्लाइन हुआ है, तो 47% हो गया है आज। फिर कोलैप्स क्यों हुआ है ना, लॉस ऑफ रेलेवेंस सेगमेंट एंड गुड। तो वो जब तुम खुद ही हाईलाइट कर दो चीज को तो बात करने में इजी पड़ जाता है। क्योंकि जब मैंने सत्यजीत को यहाँ से पूछा कि क्यों डिक्लाइन हुआ, उसको बराबर पता था कि उसको यही बात करनी है कि ये रीजन की वजह से डिक्लाइन हुआ था। ओके सर। ओके, तो वो भी ये वर्ड्स हाईलाइट करके रखते हैं हम, कि जो वर्ड्स हमको बात करने के लिए चाहिए। ओके सर। तो इसने भी देखो, इसने भी ऐसा अच्छा से लिखा है, इसने भी नो डाउट, बस सिर्फ वो ऊपर नीचे लिखा है फ्रेम। तुमने भी ऐसा लिखा है, नो डाउट इन दैट, बट अभी जब तुम बता रहे हो तो तुम्हारा वही है कि जब मैंने तुमको पूछो क्यों डिक्लाइन हुआ, वो तुमने लिखा, तुम सीधा इंडस्ट्री पे पहुंच गए सीधा। कि जब तुमने हेडिंग बोला है कि ड्रॉप्स 29%, तो मुझे तो ये जानना है ना कि 29% ड्रॉप क्यों हुआ है। ओके। मैंने इन लिखा ड्रॉप्स टू 20 कहाँ से। वो सर मैंने आप पैराग्राफ में मेंशन किया था हाँ फर्स्ट वो वाला। तो यहाँ पे ना, कि ड्रॉप्स तो सब यहाँ पे होना चाहिए कि ड्रॉप्स 29, कल कल 30% ना, 30 से 29 हो गया, कुछ इम्पैक्ट हुआ। हम्म बड़ा नंबर है कि 40 से 29 हो गया है। कैसा, मार्केट शेयर ड्रॉप टू 29% फ्रॉम 40%, तो बड़ी बात हुई ना, वो 40 से 29 हो गया है। हम्म। तब यूजुअली हम इसको बेसिस पॉइंट में बोलते हैं, 110 11,000 बेसिस पॉइंट, बट अभी वो बहुत ज्यादा बड़ा नंबर हो गया, इट इज फाइन। ये क्यों हुआ है? So because of they are more focusing on the premium bike and tying up with Harley Davidson. नहीं उसके वजह से नहीं ना, वो उसका मेजर पोर्टफोलियो 85% है, इंडस्ट्री चेंज हुआ है ना, लिखा ना उसने। देखो तुम दोनों ने भी सेम ही न्यूज पढ़ा है, वो दोनों के क्यों अलग अलग है, उसने फिर बोला भी है कि क्यों हुआ है। क्योंकि वो कम्यूट सेगमेंट पे फोकस कर रहा था, जबकि इंडस्ट्री प्रीमियम सेगमेंट पे बढ़ रही थी। है ना, शार्प शोज इन द इंडस्ट्री इज चेंजिंग। इंडस्ट्री में लोगों को प्रीमियम प्रोडक्ट चाहिए था, और ये सादे प्रोडक्ट्स ही बना रहा है। प्लस उसने जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स बनाए वो चल नहीं रहे, मीनिंगफुल हम्म इम्पैक्ट नहीं किया वो लोग ने। और दो पार्ट है इसमें, मोटरसाइकिल सेल्स है और स्कूटर सेल्स है। मोटरसाइकिल्स में क्या हुआ है, स्कूटर्स में क्या हुआ है, ओवरऑल गिरा है, बट उसमें भी मोटरसाइकिल्स में अलग हुआ है, स्कूटर्स में अलग हुआ है। स्कूटर्स में अलग रीजन के वजह से गिरा है, मोटरसाइकिल में अलग रीजन के वजह से गिरा है। स्कूटर्स ओके में सर। गिरा है क्योंकि ईवी में परफॉर्म नहीं कर पाया, और हम्म एक्टिवा
उसके जो प्रोडक्ट्स थे प्लेजर और डेस्टिनी वो अच्छा नहीं कर पाए कंपेयर टू एक्टिवा। एंड उसका भी रीजन था, उसने लिखा था, उसका भी रीजन क्या था कि वो क्यों अच्छा नहीं कर पाया, बिकॉज वो स्टाइलिंग बराबर नहीं था, परफॉर्मेंस बेटर नहीं था, इसके वजह से परफॉर्म नहीं कर पाए। ओके ओके, तो ओके थोड़ा सर। डिटेल आर्टिकल्स लिखते हैं तो क्या है, थोड़ा समझ में आता है, तुमको भी ये समझ में आएगा। अभी ये आज हमने जो पढ़ा वो हम्म तो एक्चुअली हम पढ़ काफी टाइम से रहे, बट किसी को इंटरव्यू में बोलने को काम में आता ना कि हीरो का मार्केट शेयर क्यों कम हो रहा है। सर उसके प्रोडक्ट्स इतने बकवास थे, प्रोडक्ट्स ही मतलब जो मेजोरिटी 85 डेटा के साथ कि सर 85% ऑफ द पोर्टफोलियो इनटू 100 एंड 125 सीसी सेगमेंट, जबकि इंडस्ट्री इज मूविंग टुवर्ड्स 200 सीसी सेगमेंट। देखा भी है क्या ये 152 है ये, और ये लोग ने किया, ट्राई किया टू फिल अप द गैप, बट व्हाट हैज हैपेंड इज द प्रोडक्ट इज नॉट एस्पिरेशनल। उसके ओके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है? ओके Failed to gain traction despite partnering, hasn't carved out. Caters to the niche that compromises 1% of the overall two-wheeler market. तो बोलते हैं उनके हार्ली this also you can add कि ना एक हार्ली डेविडसन के जो पोर्टफोलियो है only caters to 1% of the market. यस सर, ये तो अभी वो क्या बोलते हैं ऑटो का वो बना रहे हैं ना, हाँ, उसमें दिखा रहा है कि कोई सेल्स ही नहीं है, फैट बहुत है, बाकी जो भी इन लोग के वो है उसका सेल्स आ ही नहीं रहा है, ऐड ही नहीं। only caters to one. इतने महंगे बाइक लेने वाले है कौन इंडिया में? मंथली सेल्स भी से 100 मॉडल्स भी नहीं है वो। ये दिस इज तो ये तो सच्ची जैसे बराबर लिख के रखना है कि दिस इज अ बेस्ट वे टू से कि टीवीएस अच्छा क्यों है, हीरो क्यों नहीं है, ठीक है, या ये बजाज सर अच्छा क्यों है, हीरो क्यों नहीं है। लिख के भी रखा है, और ये जब अभी बनाएंगे ना मंथली ऑटो के, वो आपने बोला है ना हाँ, मंथ डाटा पंच हो गया, जब उसका वो बनाएंगे कि स्लाइड्स बनाते हैं या फिर पर उसके पर कंपनी वाइज अगर मैं लिखूंगा तो क्यों हाँ, अप डाउन हो, उसके लिए अच्छा डाटा मिल गया, रीजंस। रीजन मिल गया, हाँ, कि सब उसके एक भी प्रोडक्ट नहीं चल रहा है, प्रोडक्ट के साथ दिया। अभी देखो हीरो हीरो के कंपनी के बारे में पूरा इधर ही पता चल गया तुमको कि हीरो कंपनी करता क्या है। सिर्फ सेल्स नंबर तुमको वो डेटा ऑटो बंडल से मिल जाएंगे, बाकी तो एक्सट्रीम हो गया उसका, सब जूम हो गया, स्पोर्टी, डेस्टिनी हो गया, सब प्रोडक्ट्स के नाम के साथ दिया है। हार्ली के भी मुझे भी नहीं पता हार्ली के इतने सारे प्रोडक्ट्स है इसके, नाइट नहीं सर, स्टार, वो तो पैन ऑटो अमेरिका। पंडिट्स में हम लोग देख रहे थे, प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा हैं बट सेल्स ही नहीं है, इसीलिए उसका नंबर्स हम लोग उसको ले ही नहीं रहते नहीं बोला हम ना लोग कि हाँ ये है ही नहीं ना, ये हार्डली 1% है तो। हाँ सर, सेल्स मंथली सेल्स अराउंड 19-20 का भी नहीं है इसका, मतलब अगर मैं ऑटो पंडिट्स नंबर चेक कर रहा ठीक है, तो सिद्धांत वो जो मैंने ऑटोमोबाइल वर्कशॉप जो दिया है ना वो एक बार पढ़ लेना, वहां पे तुमको थोड़ा ना वो नंबर जब डालते हैं तो थोड़ा समझ में आता है कि कंपनीज क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कौन से कंपनीज के कौन से मॉडल्स है। हाँ ये ओके हमको सर। भी दिखते ही है, डेस्टिनी दिखती नहीं है रास्ते पे कभी। स्कूटर तुमको खुद को भी लेना होगा, स्कूटर कभी गए क्या डेस्टिनी, कभी तुम्हारे लिस्ट में भी था डेस्टिनी बाय करने करके? नो सर। लिस्ट में भी नहीं होता है। यस टू सर। और स्पेसिफिकली वुमन फोकस्ड है, तो डेस्टिनी काफी हल्का बाइक है, वो रणवीर कपूर एड में आने का उसके, इफ यू नो। नोटिस नहीं है सर। हाँ, पहले आने का बहुत टाइम पहले, तो फिर नहीं आता है। that's why they have shifted to X boom sir, the muscular look and all now, but already they are late into the market, that's the issue. हाँ, एक्स जूम ये है ना, स्कूटर ही है ना वो भी। Yes, Zoom X boom like heavy 125 cc they are entering, but still they are like traction they are not getting sir, because competition is already heavy. ऐसा दिखता है जूम में, नहीं देखा है। पर वो कंपटीशन छोड़ो, मतलब स्कूटर्स में एक्टिवा छोड़ के देयर इज नो बाइक। और ये दूसरा तुम्हारा टीवीएस जुपिटर, वही कर रहा है ना दोनों, इफ यू टॉक अबाउट बाइक स्कूटर्स। Yes sir, these two only getting traction. मैंने देखा नहीं जूम के, ये 110 सीसी का है सर, ये वाला है ना? हाँ सर, यही है, इसका एवरेज भी अराउंड 60 के एमपीएल है, तो मतलब दे आर लॉन्चिंग बट स्टिल पीपल आर नॉट, नंबर्स में नहीं आ रहे हैं लॉन्च, तो कितने की आती है ये? 110 के अराउंड थी सर इतनी अराउंड। महंगी है 110 की? हाँ सर, सीसी ज्यादा है ना इसमें। अच्छा नहीं, 110 सीसी भी है क्या? अच्छा, और ये सर अभी 160 का भी लॉन्च कर रहे हो तो 160 का है, 160 सीसी का जूम आने वाला है एंड 160 सीसी का बाइक स्कूटर?
हाँ या दिस ईयर बाय द एंड ऑफ दिस ईयर एंड 125 पे तो है, 160 का भी आने वाली। Are you sure? इतना इतना या मैं powerful? कल ही पढ़ रहा था वर्कशॉप, मतलब वर्कशॉप का वीडियोस देख रहा था, तो वहां पे मैंने अपकमिंग लॉन्चेस वो बाइक देखो करके है ना, वहां पे मैंने वो देखा। Is it? आई थिंक सुजुकी का भी है ना कुछ स्कूटर्स है इन दैट रेंज, प्रीमियम स्कूटर्स, दे माइट वांट टू compete with them. 160 आई एम नॉट श्योर ना, मतलब कि क्या है, मतलब आई हैव नेवर। अच्छा इतना महंगा, अच्छा ये वो बर्गमैन वाला। This is like उसके जैसे। सेल हीरो। आई डोंट सी दिस, मतलब आई डोंट ड्राइव स्कूटर्स मच, तो मुझे नहीं पता इसका क्या है, बट जैसा से दिख रहा है। ये टेल मी 1,50,000 के लेट्स हैव तुम्हारी जनरेशन जो लेगा, ऑब्वियसली माय जनरेशन विल नॉट बाय बिकॉज आई हैव ऑलरेडी क्रॉस 35। तो अभी इसमें तो मैं स्कूटर पे वापस जाऊंगा नहीं। आई डोंट ड्राइव स्कूटर्स, प्रोबेबली आई विल। चलो मुझे ना एक स्कूटर, ठीक है, सी आई हैव कार्स, ओके, आई एम अ बिजनेस ओनर। तुमको लगता है आई विल गो बाय स्कूटर? प्रॉब्लम ना, चलो मुझे चाहिए भी होगा तो एक मैं फॉर मेरी फैमिली के लिए या मेरे बच्चों के लिए मैं ले ले लूंगा, लेगा आदमी, पर ये नहीं ले। या फॉर ये लूंगा मैं। आई थिंक आई विल बाय नहीं दिस। सर। मतलब पैसा ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है मेरे पास, बट पैसा होके भी विल आई बाय दिस? व्हाट विल आई सर प्रेफर? इतने एक्टिवा। अमाउंट में तो कोई दूसरा और बेटर बाइक पे जा सकता है इंसान। अगर स्कूटी हाँ, लेना है तो फिर वो नॉर्मल स्कूटी लेना। नॉर्मल स्कूटी का मतलब ही होता है लोकल चलने के लिए, मतलब यहाँ से थोड़ा दूर लोकल आसपास जाना हो तो भाई चलो स्कूटी ले लेते हैं। करेक्ट सर ये तो। प्राइस पे तो रॉयल एनफील्ड का हंटर आता है, बेस वेरिएंट 150 में। आई एम नॉट श्योर व्हाट इज द स्ट्रेटेजी। कोई तुमने बोला 160 सीसी आया था कि इतना इतना बड़ा बाइक, मतलब आई एम नॉट श्योर ये सेगमेंट है भी क्या इंडिया में। है वैसे लोग लेने वाले, बट कितने होंगे, मतलब हु विल बाय, मतलब ऐसा मैं भी सोच रहा हूँ कि विच आर द पीपल हु विल बाय दिस। Bergman, what on what CC it comes because उसका monthly sales around 30 to 40K के around है, और पर तो बर्गमैन confident 125 ही है ना, 160 नहीं है okay, सिर्फ। nice, nice. हाँ, इफ यू बर्गमैन इतना नहीं है। बर्गमैन 160 सीसी ही है, इट इज सॉरी 125 सीसी के ही है जो मेजर सेल्स जो होता है ना। Mhm. But how many Bergman do you see on the roads? I hardly see. So very hardly, but yeah, I'm just saying that 40 to 30K per month Yeah, it's making. Bergman 125 ही है। हाँ वही, ठीक। मेजरली उसका 125 सीसी है, अभी बाकी होंगे यमाहा उसके। का है सर, हाँ यमाहा का एंड वेस्पा करके स्कूटर्स है, हाँ, वेस्पा का उनका था। वो लोग 150 160 में। करेक्ट, हाँ। वेस्पा तो बंद ही हो गया है। यमाहा का वो एफसी है आई थिंक, देयर इज वन मोर। यामा का है स्कूटर। हाँ ये एरोक्स है, दिस वन, हाँ। हाउ मेनी ऑफ यू सीन दिस ऑन द रोड? मैंने नहीं नोटिस किया ये। Sir, I've seen this on the road, sir. नहीं, Sir, मतलब सर कितना वेरी Aerox. लेस, लाइक नहीं, मतलब महीने का बहुत सर कम है 1500 सर। यूनिट बिकता है, बस ज्यादा नहीं है सर। इसका ऑर्डर कंड्यूस पे चेक किया था, 150 1500 मंथली जाता है लास्ट लास्ट में सर, एकदम लास्ट। लास्ट में यामा 1000, और उसका कितना था? 1000 ही है। आई एम नॉट श्योर व्हाट इज हीरो डूइंग इन दिस सेगमेंट, क्यों ला रहे हैं ये, विच सेगमेंट दे आर टारगेटिंग। लो, मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ कि अगर मुझे लेनी हो बाइक तो मैं आई विल नेवर बाय दिस। एंड यू सर नो पर व्हाट आई प्रेफर? ये सेगमेंट से मार्जिन इंप्रूव हो सकता है ना कंपनी का, वॉल्यूम ग्रोथ तो नहीं आएगा, बट मे बी मार्जिन इंप्रूव हो सकता है ऑफ कोर्स, सेल्स ही नहीं मतलब है तो ट्रैक्शन मार्जिन मिलेगा कहाँ तो। मार्जिन इंक्रीज होने के लिए भी तुमको वो ये चाहिए ना, इकोनॉमी ऑफ सेल्स ग्रोथ होना स्केल। चाहिए, अच्छा ओके वॉल्यूम। इकोनॉमी ऑफ स्केल्स भी तो आएगा कि इतना प्रोडक्शन क्वांटिटी है, उतना तो कम से कम होना चाहिए, उसका ब्रेक इवन पे तो आना चाहिए। एबिटा लेवल पे होगा, बट एबिट लेवल पे अगेन इट विल बी अ लॉस। प्लस इसका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, मार्केट करना पड़ेगा इसको। No, so their main challenge is premium bike only. Scooters, so they are working V2 and all, they are launching and working hard. But premium bike, they are totally blank, sir. No, no interest. लुक्स डिफिकल्ट, इसने बेचना चालू किया क्या उसने वो, ये जूम नहीं सर, अभी 160 तक नहीं ना? नहीं। नहीं, no, अभी नहीं। जूम के तो ऐसे ही सेल्स कम हो गए।
No, so what I was thinking कि मुझे अगर कोई बाइक लेनी है at my level तो I will purchase a EV probably an EV टू व्हीलर ना, कि चलो मुझे ज्यादा चलानी तो है नहीं, इधर इधर जाना है तो आई शुड गेट अ आइस। और अगर मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है तो probably I will buy an Activa या Ntorq एक्टिवा सर। जुपिटर या जुपिटर डिपेंडिंग ऑन माय बजट जो है वो। सर एक और प्रॉब्लम है हीरो के साथ कि ये मॉडर्नाइजेशन के अकॉर्डिंग जो ईवी स्कूटी या ईवी बाइक आ रहे हैं वो उसमें ये आ ही नहीं रहा है, एंटर ही नहीं कर रहा है। वो वीडा का कर रहा है ना, वीडा के अच्छे लग रहे हैं मॉडल्स। And This so another model, problem with Hero is कि अभी ABS भी mandatory हो रहा है for हाँ bikes with less than 125 cc. So that will mostly impact Hero because उनका वहां से आता है ना, commuter segment से sales आता है। करेक्ट, हाँ I हाँ think 5,000 7,000 rupees का कुछ impact है, मतलब हाइक हो सकता है करेक्ट करेक्ट। entry level bike prices में। वो आज न्यूज था सर कि 3,000 to 6,000 it will be impact and that will be directly to the consumer because margin is very low, so they can't absorb it. करेक्ट करेक्ट। ये तो मतलब डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द हैव अ क्लोज लुक एट द सेल्स नंबर। इसके लिए वो ना ऑटो सेल्स नंबर इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि देखना कि एक्चुअली सी वी कैन गो रॉन्ग ऑन इट। अगर हमको बोलना है कि मैं बोलता कि 160 चलेगा नहीं बट प्रोबेबली चल गया तो नहीं सर, आज वो प्रीमियम बाइक्स के ऊपर भी एक आर्टिकल आया था ईटी में। क्या क्या था वो? हेलो हाँ, क्या आर्टिकल था वो विघ्नेश? सर, वो प्रीमियम बाइक्स लाइकली टू अकाउंट फॉर 22% ऑफ टू व्हीलर मार्केट का सर 2030 का ऐसा एस्टीमेट है। अच्छा, प्रीमियम में प्रीमियम प्रीमियम से 150 सीसी के ऊपर वाले। बाइक्स में ना, हाँ बाइक्स में ना। बाइक्स में सर, नहीं, हम स्कूटी में स्कूटर नहीं। की बात कर, हम स्कूटर की बात कर रहे हैं विघ्नेश। बाइक्स में तो है ही, बाइक्स तो हो ही रहा है। बाइक्स में कौन है जो तुम लेते हो? स्प्लेंडर है तुम्हारे पास आजू बाजू में? तुम्हारी 10 लाख सैलरी होगी तो तुम स्प्लेंडर लोगे? प्रॉब्ली तो नहीं। प्रोबेबली इफ यू हैव 10 12 लाख से सैलरी, तुम एमबीए हो, सीएफए हो, तुम थोड़ी स्प्लेंडर लोगे। स्प्लेंडर लेने वाले लोग अलग है, जहाँ पे दिख नहीं रहे। मतलब लो पीपल आर प्रेफरिंग क्रेटा। मतलब 20 लाख लोगों के पास है खर्च करने के लिए, फिर तुम 50,000 की तो बाइक नहीं लोगे। ओके ओके गाइस, गुड डिस्कशन टुडे। एनीवन एल्स? किसी को कुछ पता? संचित कुछ बताना है तुमको? और संचित सर वो मेरा टॉपिक वो उसका फर्स्ट प्रेजेंटेशन था उसी में हो गया था, तो मेरे को ठीक है तो प्रिपेयर बोलो नहीं ना, था तुम सर। बोलो। ठीक है, स्प्लेंडर का था तो क्या है, तुमको क्या लगता है? चलिए, अर्बन का था ना। तुमने इतना स्प्लेंडर नहीं छोटा वो, क्यों लिखा? हाँ ये तुमने इतना छोटा क्यों लिखा है? लोगों ने कितना बड़ा बड़ा लिखा है। सर वही मैं नेक्स्ट टाइम से थोड़ा इम्प्रूव करूंगा उसको। मैंने उसको वही था कि जो उसका अर्बन जो एफएमसीजी है वो सरपास किया है रूरल एफएमसीजी इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। हम्म एंड बिकॉज की इन there is a unseasonal region in the rural areas. Due to this, the value of the rural FMCG declined, but in the urban FMCG, there is some premium product which the value, sales is increased. Due to this, the sales of the value of the urban FMCG rise. तो सब काफी होना चाहिए ना उसका डेटा। Yes, sir. Yes, sir. Next time I will do. या काफी, यू हैव टू टॉक फॉर 1 मिनट। ऐसा होता है कि 1 मिनट जितना न्यूज तुम्हारे पास होना चाहिए। Yes, sir. Yes. ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू, सी यू टुमारो 10:30। तो हाँ हाय सर। हाँ हाँ चल क्या। सर जस्ट वन थिंग, जो रिजल्ट्स जैसे अभी आएंगे तो हाँ उनको ट्रैक कैसे करें सर, कि मतलब कब कौन सा आ रहा है उसके एक बार मतलब आप बता देंगे क्या हाँ मैं पहले? बताता हूँ, मेरे को बताना है कल वो क्लास में। वो जो मार्केट ट्रैकर का फाइल है ना, उसी में हम करेंगे। ओके ओके ठीक है सर। ओके, And sir, क्या बोल रहे हो? सॉरी। Siddharth, go ahead, go ahead. yeah, okay. Thank you, Subham. So, sir, I was asking, suppose I am tracking 5 companies of the four-wheeler sector. हम्म So, if in the four-wheeler, the top 5 company comes, one company come Toyota, but the Toyota doesn't provide press release. Means हाँ हाँ I'm not able to find. Means is there a हाँ। press release of Toyotas or नहीं, प्रेस रिलीज तुमको सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के ही मिलेंगे। okay? तो So then लिस्टेड should I track Toyota or should I? नहीं तो ट्रैक तो टोयोटा, तो इसके लिए फिर वो बोला था ना मैंने, वो नंबर्स बोले थे हाँ, नीचे ऑटो Industry पंडित के number. नंबर। ऑटो पंडित से नंबर्स। हाँ वो वहां से मिलेंगे और वो लेट आते हैं।
पर हमको जो ओके नंबर जो कंपनी लिस्टेड है उसके नंबर्स तो फर्स्ट को या फर्स्ट को ही आ जाता है। ओके ओके सर। तो सिर्फ लिस्टेड की ही बात करनी है सर अभी के लिए तो। और ये हम्म, क्या है ना, अभी देखो हमने क्या बात की अभी, बर्गमन की बात की, तो बर्गमन इज नॉट लिस्टेड, सुजुकी लिस्टेड नहीं है, बट हीरो लिस्टेड था। तो हमने हीरो को कंपेयर करके फिर बर्गमन की बात की। तो हम सुजुकी ट्रैक नहीं कर रहे, हम हीरो ट्रैक कर रहे हैं। बट हीरो ट्रैक करते करते हमको सुजुकी भी ट्रैक करना चाहिए क्योंकि उसके कॉम्पिटिटर है वो। तो वो सेक्टर सॉफ्ट रिसर्च बोलते हैं उसको, सॉफ्ट कवरेज बोलते हैं, कि तुमको पूरा टोयोटा के बारे में बात नहीं करनी है, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि टोयोटा करती क्या है। ऐसा ओके सर। ऐसा। ओके सर, थैंक यू। सर, हाँ शुभ। मैंने सेकंड लेक्चर खत्म किया था कल, मैंने थर्ड भी खत्म किया है वैसे। परसों मैंने सेकंड लेक्चर खत्म किया था। तो सर अपने सेकंड लेक्चर में ना आपने बताया था कि मतलब एफएमसीजी के कुछ जो भी कंपनीज हैं उसको उसके कॉम्पिटिटर्स और उनके प्राइस प्रोडक्ट्स उनका एक एक्सेल सीट या फिर जैसे भी हाँ वो बना के देना ऑटोमोबाइल का। मैंने आपको सर कल डिलीवर किया था, आपको शेयर किया था सर। और सर एक था कि थर्ड लेक्चर में जो आपने मार्केट ट्रैकर का जो डिस्कस किया था पूरा प्रॉपर, हाँ तो उसमें सर मुझे डाउट ये था कि मार्केट ट्रैकर जैसे आपने शायद आई थिंक 19th जून में क्लास लिया था वो। हाँ तो 19th जून के बाद का जैसे 20th जून 21st जून ऐसे कंटिन्यू किया था। तो अभी मैं हाँ। अगर करूंगा तो कैसे करूंगा सर? मतलब सपोज करूँ कि मैं कल से या परसों से स्टार्ट करता हूँ, तो सेम डे से वो स्टार्ट करूँ या फिर मतलब प्रीवियस मंथ का जून से स्टार्ट करूँ? और डे डे बाय डे मतलब मुझे वो चेंज करने हैं डेटा या फिर कैसे एक बार? हाँ तुमको डे बाय डे वो चेंज करना है। अभी कैसा है शो यू, ये राधिका ने बनाया था, तो ये था। तो सर ये मार्केट ट्रैकर जो है वो उसका और जो आपने वर्कशॉप लिया है हाँ जो डेटा पंचिंग वाला, उन दोनों में डिफरेंस क्या है सर? मतलब डेटा डेटा पंचिंग का कौन सा, नहीं वो अलग है। डेटा पंचिंग वो इसका था, वो पीएनएल का था, डेटा पीएनएल बैलेंस शीट कैश फ्लोज था। नहीं नहीं सर, वो फोर्थ लेक्चर नहीं सर, जो एक वर्कशॉप आप जो अभी हाँ डिस्कस करते हैं वो जो मंथली मंथली वाइज। वो ऑटोमोबाइल के नंबर्स है, कि जो ओके नंबर ओके ओके अभी हमने देखे ना, ये ऑटो पंडिट्स में नंबर्स देखे ना अभी जस्ट, वो। ओके ओके ठीक है, वो तो मैं स्टार्ट करूंगा तो हाँ, फिर जब टाइट होगा तो मैं दोबारा क्लियर कर लूँ। एक बार ये बता दो, सपोज करो सर मैं अगर मैं 15 जुलाई से मैं करता हूँ, तो डे वन से मैं 15 जुलाई से स्टार्ट करूंगा ना डेटा जो भी डालना होगा? तो कैसा है, तुम, हमको चाहिए 1 डे चेंज, 1 वीक चेंज, 1 मंथ हाँ। चेंज और 1 ईयर चेंज, ठीक है। यस तो यस। 1 ईयर 15 जुलाई है, तो 15 जुलाई का जो एंड होगा वो वहां से, ठीक है। तो मैंने बोला था कि 1 साल के नंबर्स डालो तुम, तो हर दिन के नंबर्स डालो, ऐसा है। नंबर्स तो हर दिन के डालना है। हाँ हाँ हाँ। तो क्यों? अब सर जैसे हाँ एक बार। क्योंकि ना ऐसे समझ देखो यहाँ से ना नंबर जब चेंज होता है ना, तो समझता है कि क्या चेंज हुआ है। और ये तो हम्म। सिर्फ आज के लिए, मतलब अभी जैसे लेट्स से आज ये था ही नहीं, ठीक है, मैं ये कॉपी करता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है, मैं बोलता हूँ ये आज था ही, ठीक है, ये आज था ही, बराबर। तुमने 2 से बनाए, एग्जाम में आज 2 था, फिर तुम यहाँ पे 3 के नंबर डालोगे। अब हाँ ये जो था डे होगा, तो ऐसा होगा तुम्हारा, इधर से होगा, करेक्ट। हाँ हाँ। ये डे चेंज ये होगा, बराबर, ऐसा होता होगा। वीक का तो भी है। सर अभी तो हाँ अभी तो 1 डे या 1 वीक का ही चेंज होगा ना मेरे साथ, क्योंकि अगर सपोज करो मैं कल लिया फिर परसों कर लिया तो एक दिन का चेंज मैं शो करूंगा, फिर एक वीक जब हो जाएगा तब फिर एक वीक का मैं चेंज शो नहीं तो करूंगा ना? 1 वीक का पहले से करके रखना, 1 मंथ का करके रखना डेटा आप, 1 मंथ का पूरे, अच्छा क्योंकि एक। अभी क्योंकि अच्छा क्या हो अच्छा। गया, क्लासेस चालू हुआ है 14 जून से, बराबर। हाँ 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 कोई पूछे 14 दिन से क्या किया तुमने, क्या ट्रैक किया, तो 1 मंथ का तो होना चाहिए कि हाँ। ट्रैकिंग क्या कर रहे हो, ओके ओके ओके। कि तो एक मैं मंथ में क्या चौदह हुआ है। जून से 14 जून से स्टार्ट करूं फिर इसका डेटा डालना और इनपुट फर्स्ट करना जून ना? से 1 जून से अभी तक 11 जुलाई तक फर्स्ट। डेटा देना चालू करो, ठीक है। तो ओके तुमको ओके। कि कौन सा मूवमेंट कब हुआ था। अच्छा, तो अभी इसमें क्या होगा, जब तुम इधर का डेटा डालोगे ना, यहाँ पे सब डेटा तुमको ना सिर्फ वो कॉपी पेस्ट ही करना है, हाँ हाँ। यहाँ पे ना, सर यहाँ पे। पर डे के हिसाब से पर ईयर चेंज हो जा रहा है ना, पर ईयर का डाटा हर दिन डालना पड़ेगा लेकिन हाँ आपको। पर ईयर का फिर डालना होगा, वो एक है। तो ठीक है, हाँ पर ईयर वही का तो। जाने दो, ईयर का जाने दो, मंथ से तो करो। हाँ सर हाँ। ईयर का रेडी है मेरे पास, हाँ। यूजुअली बट मैंने ईयर बोला वाले था 1 ईयर कंफ्यूजन चेंज था। भी, 1 ईयर चेंज क्या, उस दिन का हम्म। जाके प्राइस सिर्फ देख लेना ना, और कुछ नहीं बस। यस और फिर ये हाँ ठीक है। कॉलम ऐड करता जाऊंगा ना मैं, मतलब जैसे बीच में जैसे हाँ अभी फोर्थ
of Sir, July. per month will change the sheet or like in same sheet नहीं सेम every शीट तो अभी month ये will चेंज होगा। देखो क्या किया मैंने, ये डेटा था ना जुलाई का डेटा था, करेक्ट। ये जुलाई जुलाई का था, थर्ड का, ये फोर्थ का था। तो ये जो था फॉर्मूला वो थर्ड इस पर लगा हुआ था, राइट। आई विल जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इट। तो क्या करोगे फिर, ये but जगह हाइड कर देना, ये वाला है ना, हाइड कर देना। hmm, तो इसका भी वीक में है, तो वीक में एक ऐड कर देना, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, पूरा कॉपी एक करो, ऐड करते जाएंगे और sheet नहीं, so even month चेंज कर change दो। we तो continue. अपने हमारी ये शीट ये कर देना, ये यहाँ पे लिंक कर देना, सिर्फ ये 1 वीक का यहाँ पे लिंक कर देना, ऐसा। ठीक। तो क्या कि हर दिन तुमको, तो ये फिर हाइड कर देना, तुमको उस दिन का मिल जाएगा। क्योंकि लेट्स से तुमको आज का बताना, तुमको मुझे बताना है कि आज क्या हुआ मार्केट में, 11 जुलाई आज क्या हुआ है मार्केट में। तो बाकी के चीज से हाइड करते जाना। क्यों काम में आएगा, जब बाकी हम जब डेली करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि अरे कौन से डे पे सबसे ज्यादा चेंज हुआ था। तो वो अपने बाद इधर ऑटोमेटिकली वो डेटा अपडेट होता जाएगा, ऐसा है। तो सिर्फ कॉपी पेस्ट करके रखना, और बाकी जो है ये कल का था ना, तो इसको हाइड कर देना बस। सेम वे यहाँ पे। ओके सर, जो आपने अभी किया ये 8.51 जो परसेंटेज है वो हाँ मतलब कल का डेटा को कॉपी करके आज का डेटा मतलब आज जो चल रहा है वो शो कर रहा है ना ये। आज छोड़ो, हाँ ये फोर्थ, अज्यूमिंग कि ये फोर्थ का है ना, थर्ड के तक मेरे पास डेटा था, तुम आज फोर्थ का हाँ। डेटा है, तो ये ऐसा हो। मैं डालू यहाँ पे ना, ये करो सब ऐड करो, तो ये फोर्थ का डेटा था। तो क्या किया मैंने, मेरा ये आज का था ना, आज का हो गया, तुम लोग आज आज डालोगे वापस, तो ये मुझे जब भाव कॉपी आएगा तब मैं वापस यहाँ पे डालूंगा। ये फोर्थ देखो नंबर्स अलग है, थर्ड के फोर्थ के, पर ये चेंज है मेरा थर्ड और फोर्थ का है, सॉरी सेकंड और थर्ड का है। मैं क्या करूंगा, कॉपी एंड पेस्ट यहाँ पे। और सर ऐसे ही मतलब 7 डेज होगा तो वो हाइड एक एक दिन का हाइड करता जाऊंगा और एक एक दिन इंक्रीज करता एक जाऊंगा एक ना। इंक्रीज करा जाऊंगा, करेक्ट। ये अभी ये था, तो अभी ये हाइड कर देना, ये पूरा का पूरा हाइड इट। ठीक है। ओके ओके। तो ये वीक का 1 वीक का है, तो वीक के बाद डालना, वीक के बाद ये कॉपी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और वीक का पहला डेटा होगा तो ऑटोमेटिकली तुमको डेटा, तो इसके लिए ना 1 मंथ का डाल के रखो, तो 1 मंथ का तुमको वो आता रहेगा और मंथ। फिर जब एक वीक कंप्लीट हो जाएगा फिर जब दूसरा वीक जो कंप्लीट होगा तो फिर एक फर्स्ट वीक का जो भी डेटा है उसको हाइड कर देंगे हम। हाँ फर्स्ट वीक का डेटा को हाइड कर देना। ओके ओके ओके, वो गॉट वीकली, इट ये गॉट इट। वीकली डेटा, ये डेली डेटा है, मंथली डेटा है हाँ बस। हाँ, समझ गया समझ तो गया। एक एक दिन से भी ऐड ही करना है और हाइड करते जाना है बस, और कुछ नहीं। ये हो गया, ये हाइड कर दो। तो सर प्रीवियस डेट को भी सबको हाइड करना है। प्रीवियस, सर ये प्रीवियस डेट मतलब समझो अभी 30 से अभी 7 डेज है तो ये सब डेट्स को भी हाइड करना है ऐसा। नहीं नहीं डेट्स क्यों हाइड कर रहे हो, चाहिए तो रहने दो डेट्स, चाहिए तो हाइड करो, ऐसे कुछ है नहीं, वैसे तो कर नहीं सकते वो हो। सर फिर वो लेंदी नहीं हो हाँ जाएगा सर अगर। लेंदी हो जाएगा, हाँ हाइड कर दो, हाँ हाइड कर दो, हाइड कर दो भी चल जाएगा। रिसेंट ही रख दो, जो है वो एक आध 2 दिन का ही रख देना, चल जाएगा। क्योंकि मेन तो चेंज है ना, हमको प्राइस का क्या लेना देना है। चेंज अगर एग्जांपल अभी यहाँ पे तो कुछ अलग दिख रहा है, बट अब एग्जांपल 257% का हमें ध्यान में आ रही, इतना क्या हो गया स्टॉक में। ओके। सर ये मेरा इंटरव्यू का हो गया। किसका हो गया। मेरा हर्ष हर्ष। हाँ अच्छा। यस, वो इंटरव्यू तो हुआ सर, बट दे डिडंट आस्क मी एनीथिंग स्पेसिफिक टू कंपनी और दिस। तो क्या पूछा, अच्छा हो मतलब गया कि इंटरव्यू, इंटरव्यू हो हाँ गया। वही ना, वही अच्छा। मतलब मतलब आई जॉइन 10 minutes early, so they हाँ started 10 minutes early itself. हाँ But they just simply asked me, okay, tell me, like, like, walk us through your CV. So I हाँ just told them कि okay, this is my education. मतलब इंट्रोडक्शन के फॉर्म में मैंने बोल दिया कि मेरा नाम ये है, ये पढ़ाई किया है, अभी हाँ ऋषभ सर के अंडर काम मतलब ये कर रहा हूँ, एफएमसीजी ऑटो ट्रैक कर रहा हूँ, हाँ। उसके पहले ये किया, सब बताया। तो हम्म फिर उसके बाद मैं नॉर्मल पूछा, मतलब कि ओके 12th में तुम साइंस में थे तो फिर शिफ्ट क्यों हुआ। मैंने बोला हाँ कि मेरे को कोविड के टाइम पे मतलब कि आई गॉट टू नो दैट फाइनेंस इज बेटर फॉर मी, आई स्टार्टेड एनालाइजिंग कंपनी हम्म इन्वेस्टिंग, तो मेरे को पसंद आया। फिर हम्म वो उसके बाद में उन्होंने पूछा कि ओके, इफ यू हैड टू इन्वेस्ट लाइक, is like HUL investable right now, हम्म as compared to TCPL. So I told, if you ask my preference, I would invest in TCPL as compared to HUL, हम्म because their India Foods and India Beverages business is doing very well. हम्म Like so, ma'am said, okay, so what does TCPL do? I said, कि मतलब they are into FMCG. So I explained them the segments that it is हम्म into India Beverages,
इंडिया हाँ फूड में संपन्न है, कैपिटल फूड्स हाँ है, सब है। तो मैम सेड नहीं, व्हाट डज टीसीपीएल डू? मैं बोला मैम दे आर इनटू एफएमसीजी, स्टेपल्स, टी, कॉफी, लाइक दैट। हाँ बोलते हो कि करता क्या है, मतलब कि वो कैसे करता है क्या, वो मतलब जो भी सामान जो उसके पास है, मतलब जो भी वो बेचता है, तो मतलब इज इट डज इट सेल इट डायरेक्टली बाय डूइंग प्लांटेशन बाय इटसेल्फ, और डज इट डू हाउ बाय इट फ्रॉम फार्मर्स? मैं बोला नहीं मैम, दे हैव देयर प्लांटेशन बिजनेस, हाँ but that is not their like full wholesale sourcing for their tea and coffee business, हम्म as well as जैसे कि तूर दाल है या मतलब कि चना दाल है टाटा संपन्न में, हम्म तो they source it from farmer, they pack it and sell it like हम्म that. हम्म तो बोले okay, how does you value company or TCPL right now? मैं बोला मैम specifically in financial modeling term I would not be able to say you because I haven't learned it till now. हम्म But if you ask me, it will grow by 12 or 15% approximately because of the strong growth in India Foods and India Beverages. So ma'am said, okay, कौन, but we ज्योति मैम wanted, थी क्या? ज्योति मैम हाँ थी? yes, हाँ हाँ, अच्छा ओके। तो ज्योति मैम भी थी, बाला सर भी थे। बट सर अच्छा बहुत शॉर्ट इंटरव्यू चला, मेरे को कुछ कंपनी के बारे में बोलने को नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ, मतलब और फिर क्या पूछा? बस मतलब यही पूछा। और फिर उसके बाद में बाला सर ने बोला कि विल यू बी एबल टू come to office by 8 because we have that timing, हाँ and in normal days you can leave by 6, but if there is earning season then you'll have to stay for a bit longer because हम्म मैं बोला yes sir, वो analyst लोग का मतलब I said हाँ it like analyst job is that like at time of earnings it's a bit hectic but it would be हाँ okay for me, ऐसे करके। हाँ तो बोलते हैं ओके सो वी विल लेट यू नो, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? आई सेड टू सर till what time will I get estimated time, what is estimated time will I get internship or not? So he हाँ। told we will let you know by next week, like this Monday or something. अच्छा ठीक है, पूछता हूँ मैं, ज्योति मैम ने लिया ना, पूछता हूँ। हाँ शी इज माई मतलब मेरे को, फ्रेंड। हाँ शी इज माई हाँ फ्रेंड, पूछता हूँ उससे। ओके, मेरे को ना कुछ मतलब ये, मतलब मुझे ये नहीं समझा कि मैं उनको कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं बता पाया। बहुत तो बहुत पूछा ना, स्मॉल इतना सब इंटरव्यू। बताया तो ठीक था ना, मतलब इतना सब बताया तो इट इज फाइन। हाँ मतलब it seemed that they were not happy ऐसा करके ठीक है लाइक ना, मतलब फाइन, वॉट एवर, एक्सपीरियंस तो मिल गया ना। सी वी, मैंने हम्म तो ऐसे ही रेफर किया था, ऑब्वियसली यू आर नॉट इन अ सिचुएशन टू हम्म रेफर ऑल्सो, ऐसा है। या बट या सिंस तू तुम्हारे घर के बाजू में था एंड रेफरेंस, यस तुमने यस इतना सब पढ़ा भी था, तो ऐसा है कि चलो देख लो, होता है, नहीं तो ठीक है, इट्स फाइन। हाँ मतलब मैंने पूरा एक्सेल शीट भी अभी प्रिपेयर किया था सुबह उठ के वापस से कॉन कॉल जब सब पढ़ा, अच्छा तो कि मतलब कि क्वार्टर वाइज क्या क्या हुआ है, तो मतलब मैंने फॉर माई जस्ट रेफरेंस आई मतलब कि डिड इट फॉर एवरी क्वार्टर, की हर क्वार्टर में हर फूड सेगमेंट में, बेवरेजेस सेगमेंट में, एचयूएल के हर सेगमेंट में क्या क्या हुआ है, किसके जैसे ग्रोथ आई है, वो शीट मैंने रफ बनाया था एक, कि अच्छा मुझे डिटेल में कुछ पूछेंगे तो मैं बताऊं। लेकिन ओके। मुझे कुछ ऐसा कुछ पूछा ही नहीं, जीरो थिंग अबाउट कंपनी, जस्ट नॉर्मल दिस व्हाट आई टोल्ड यू। नहीं तो तुम्हारे रिपोर्ट्स देखे ना, तो प्रोबेबली क्या पता, मैं पूछता हूँ क्या है ऐसे। ओके ज्योति इज माई ओके। फ्रेंड, ज्योति ने लिया ना, ठीक है, मैं पूछता हूँ हाँ उसको। ज्योति भी थे, ज्योति मैम भी थे, एंड बाला सर भी थे। हाँ, बाला इज नॉट, मैं जब था तभी ज्योति थी, तो बाला नहीं था हाँ तब। तो मुझे ओके इसका डायरेक्ट ओके रेफरेंस, अपना एक स्टूडेंट भी है वहां से, रोहन करके जो है ना उनका एसोसिएट, ही ओके वाज स्टूडेंट ऑफ आरके एडवाइजरी ओनली, तो वो भी ओके हमारा सीवी वहां से रेफर किया था। अच्छा हाँ हाँ, क्योंकि ज्योति थोड़ी सीनियर है, मतलब डायरेक्टली मुझे नहीं करना था हाँ हाँ के लिए। हाँ ठीक है, फाइन, आई ओके विल आस्क हर क्या है। हाँ दे आर जो आल्सो जैसे मुझे, इवैल्यूएटिंग अदर कैंडिडेट्स एज वेल, तो हाँ हाँ ठीक दे है। आर इवेलुएटिंग बट लाइक मुझे बस मतलब मतलब ये चाहिए था मुझे कि लाइक was I wrong at some point of time, or why didn't they extended interview in the sense that they didn't ask about company more or things like that? नहीं, इंटर्नशिप के लिए इतना नहीं पूछते यूजुअली, अच्छा ज्यादा ठीक है कुछ नहीं मतलब पूछते। आई थॉट मेरे लिए, पर हम्म, वैल्यूएशन का पूछा ना उसने। हाँ वैल्यूएशन का मुझे पूछा, बट देन आई डिडंट हैड आइडिया फॉर दैट, सो आई क्लियरली टोल्ड व्हाट एवर वाज देयर कि ऐसे ऐसा है अभी, वी विल बी डूइंग इट, बट देन मेरे को अगर देखना है तो मैं 12-15% से ग्रोथ देख रहा हूँ, ऐसा करके। अच्छा, मेरा नाम लिया क्या तुमने उधर? तो किधर पे? मेरा नाम लिया ना कि यू आर अंडर ऋषभ हाँ वर्किंग हाँ अंडर। लिया, यस यस यस, उन्होंने ही बोला कि ओके यू आर वर्किंग अंडर ऋषभ ना, सो ऐसा बोला, यस। आप जो भी मतलब मुझे ये नहीं चाहिए कि वो मतलब इंटर्नशिप का जो होगा होगा, बट लाइक फीडबैक फॉर हाउ इट वाज, हाँ मैं पूछता हूँ उसको, ज्योति से पूछता हूँ। चलेगा। ठीक है। बिकॉज इट वाज सो शॉर्ट कि आई एम अमेज्ड। तो भी कितना मिनट चला? It started at 10:51 or something and it ended at 11:02. That's it. अच्छा, 10 मिनट में?
वैसे नॉर्मली वो लोग ने भी yes. काफी इंटरव्यूज लिए होंगे, तो वो भी फ्रस्ट्रेट, क्योंकि उनका टाइम भी होता ना, काम रिसर्च हाँ, राइट माइट बी. चल रहा है, तो उनका भी आईटी है, शी फॉलोज ऑटो आई थिंक, हाँ वो तो ऑटो ट्रैक करते हैं। उन्होंने पूछा भी ऑटो और आप एफएमसीजी ट्रैक कर रहे हो. मैं बोला हाँ। ऑटो में सिर्फ नंबर्स देख रहा हूँ अभी, हम्म। बट मोर मोर प्रॉब्लम लाइक मोस्टली आई एम फॉलोइंग एफएमसीजी ऐसे करते हैं, एज यू सेड मी टू, मतलब कन्वे कर अच्छा, दो. हाँ हाँ। ऑटो का तुमने फाइल भेजा वो नहीं ना, मार्केट ट्रैकर वाला? नहीं, अभी तक नहीं भेजा, क्योंकि वो कॉन कॉल और सब करते करते ही पूरा हम्म। वो टाइम निकल गया. लेकिन मई वाले तक का डेटा था मेरे पास में, लेकिन दे डिडंट आस्क एनीथिंग अबाउट ऑटो. क्या बता, उनको भी कुछ स्पेसिफिक जज करना होगा, देखता हूँ माइट भी. फीडबैक लेता ठीक है, हूँ। ठीक. हाँ हाँ. आप बताइएगा मुझे जैसे कुछ मालूम पड़े, जो भी मतलब बेकार भी रहेगा तो गाइड कर दीजिएगा. हाँ हाँ, वो भी मैंने तो तुमको एक्सपीरियंस के लिए ही भेजा था, हाँ हाँ, यस जाके सर. आओ देखो क्या पूछते हैं वो लोग। मैं एक्सपीरियंस के लिए, मतलब वो कैसा इंटरव्यू लंबा चलता है ना, तो एक्सपीरियंस मिलता भी. नहीं, कुछ. इंटर्नशिप के लिए इतना लंबा नहीं चलता है। अच्छा, ओके. तुमको अगर तो जो चीज नहीं. चाहिए, मतलब अगर मुझे भी जो चीज चाहिए तुमको हम्म. बराबर से बता पा रहे हो, क्योंकि हाँ हाँ, इंटर्नशिप में आई विल नॉट जज यू ना कि तुमको ये आता है कि नहीं, वो आता है कि नहीं। बरोबर. तुम यस. चाहते जैसे वही हमने जो वर्कशॉप किए थे कि बात हम्म. करने को आता है कि नहीं, वही पूछा ना, रन मी थ्रू योर सीवी या नहीं, या मतलब वही कि होता है। सीवी के थ्रू बताओ, लेकिन सर मैंने क्या क्या मालूम है, मतलब अभी रन मी थ्रू योर सीवी इज एक्चुअली इनडायरेक्टली क्वेश्चन ऑफ लाइक टेलिंग की बताओ अपने बारे में. हाँ। तो मैंने मतलब कि उनको सब बताया कि मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस है. मतलब हो सकता है स्टार्टिंग का एकदम स्टार्ट मिनट में पूछ लिया, हम्म। तो थोड़ा सा इधर उधर हुआ होऊंगा मैं, मतलब कि थोड़ा सा नर्वस और समथिंग. हम्म। बट बताया मैंने सब प्रॉपरली ऐसा करके. ये वीडियो था? हाँ हाँ, यस यस. अच्छा, वो भी मैंने थी, अपना. हाँ उसका भी हाँ, वीडियो चालू था? अच्छा। वीडियो ऑन था, यस यस. अच्छा, ओके। मैंने किया सब प्रॉपर फॉर्मल में बैठा, बैकग्राउंड मतलब जैसा कम्युनिकेशन क्लासेस में सब बताया वैसे किया. जैसे ये था कि मुझे सेटल होने में थोड़ा टाइम नहीं मिला. जैसे थोड़ा लंबा इंटरव्यू चलता है तो स्टार्टिंग ऑफ 10 मिनट्स इज लाइक बिट हॉच पॉच, बट देन इवेंचुअली इट सेट्स इन. बट इंटरव्यू तो स्मूथ का चला, तो इतना लगा नहीं मुझे कि कुछ ऐसा था. ठीक है, वो इंटर्नशिप पे लोग यही जज करते हैं कि तुम बात कैसे करते हो, ओके. वरना वो, ओके. क्योंकि आई कैन नॉट आस्क यू ऑन वैल्यूएशन ना, तुमको कुछ आता ही नहीं है तो मैं तुमको पूछ के करूँ, बरोबर. तुम खाली परफेक्ट के ऊपर परफेक्ट. डिमोटिवेट हो जाओगे। यस. तो जो तुमको आता है वो बताओ, तुम ऐसा है, ठीक है ये चार चीजें बरोबर. आती है ना, इट्स फाइन, ओके, आई विल हम्म. लुक एट अदर कैंडिडेट्स एज वेल, अगर उनको कोई दूसरा कोई मिलता है वही काम पे ऐसा। समझा समझा, अंडरस्टैंड. तो ठीक है, फाइन, जो भी बोला वो बराबर बोला ना, और कुछ नहीं। यस यस. जो भी मतलब जैसे मैंने आपको सब बताया, आई थिंक सो इट वाज राइट ना, फार्मर से ही लेते हैं एंड देन हाँ उसको हाँ, प्रोसेस फार्मर से करके ही देते हाँ। हैं. हाँ. हम्म। तो वैसा सब कुछ मैंने प्रॉपरली बताया कि प्लांटेशन बिजनेस है, बट वहां से सब सोर्सिंग नहीं होती है कि सब इंडिया कॉफी का, मतलब सब बेवरेजेस, इंडिया बेवरेजेस का बिजनेस उससे चल रहा है, ऐसा नहीं है. ओके, ये क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी होते हैं, क्योंकि उनको भी पता नहीं होता क्या है, हम्म. ये सिर्फ उनको तुम कैसे आंसर देते हो उस पे होता है। ओके ओके, मतलब मैं नॉर्मल कॉन्फिडेंस से आंसर दिया कि ऐसे ही है मैम. हाँ ऐसा. हाँ, वही होता है कि जो भी हाँ. रॉन्ग भी बोलना तो कॉन्फिडेंस से बोलना होता है कि यार सही है, ठीक है. मैंने तो यही पढ़ा है, अभी हो सकता है रॉन्ग में, बट मैंने तो यही पढ़ा है। क्वेश्चन है कि अच्छा हम्म. चलो इसने कुछ तो पढ़ा है। अंडरस्टैंड. लेकिन एक चीज ये अच्छी हो गई सर, विद इन दिस वन डे नाउ आई नो अबाउट बोथ टीसीपीएल एंड एचयूएल इन एंड आउट, लाइक मोस्टली कि क्या कर रही है कंपनी, कहाँ ग्रोथ है कहाँ नहीं है. अच्छे से एकदम. ये इसका आंसर कैसे देने का, जब वो पूछते हैं ना कि विच वन शुड आई इन्वेस्ट इन, वाज माय आंसर नहीं, रॉन्ग और तुम्हारे वाज इट क्यों, राइट? सी इसमें इन्वेस्ट क्यों करना, तुमने बराबर बोला ना कि टीसीपीएल में इन्वेस्ट क्यों करना है, बिकॉज प्रीमियम पोर्टफोलियो है, डिजिटल प्रेजेंस हम्म. उसका ज्यादा है कंपेयर टू एचयूएल। हाँ, मैंने ऐसा बोला क्योंकि इंडिया कैपिटल, मतलब कि इंडिया फूड्स एंड इंडिया बेवरेजेस आर डूइंग मच बेटर एज कंपेयर टू अदर एफएमसीजी कंपनीज और देयर अदर पोर्टफोलियो एज वेल. नहीं, मच तो आई बेटर थिंक सो. मतलब क्या, मच बेटर मतलब डू यू हैव डेटा मतलब पॉइंट? मैंने उनको उनको डेटा पॉइंट देने के लिए, मतलब ऐसा वो कुछ पूछते ना, ओके हाउ इज इट ग्रोइंग और कुछ ऐसा, तो मैं सोचा कि वैसे बोलना है. नहीं, तो इसमें ये तो हमने तो डिसाइड किया था ना हर्ष की, टाटा कंज्यूमर्स क्यों है, बिकॉज इट इज प्रीमियम प्ले है उसका, हाँ हाँ, वो मैंने एचयूएल बोला का। कि हाँ। दे हैव प्रीमियम कैटेगरी हम्म। एंड ग्रोथ कैटेगरी, मतलब कि उसमें मतलब उनका ग्रोथ ज्यादा आ रहा है, जैसे मतलब कि संपन्न है, नरिश्को है, क्यों ये ज्यादा आ सब रहा है. है, क्यों ज्यादा आ रहा है? तो वो एकदम ऐसा प्रॉपर स्टार्ट से एकदम रीजन बता देना था क्या, हाँ तो क्योंकि क्यों उन्होंने मेरे को मतलब कैसा, इफ बिजनेस यू के आस्क बाद. मी व्हाई टाटा कंज्यूमर, सो आई विल से हम्म. Tata Consumers is into premium products. हम्म. Basically, their portfolio is into premium products.
and the premium product sales in the country is increasing because of change in shift in consumer behavior. People are preferring more of a cereals than a traditional food. So Tata consumers have acquired two brands, plus the organic people are moving towards organic product as well. So they have acquired another brand that is called Organic India, and that is growing at a much faster pace. Example, 15-20% compared to its traditional product. Whereas HUL is not present in the premium product. HUL ka they are into specifically into beauty, and beauty has a lot of competition. Plus Tata consumers ka sir, rural sale is much better. Rural sale is higher as compared to HUL. Tata consumers is rural focused. And sir, if you look at the industry, sir, आज अगर आप न्यूज़ पढ़ते हैं रोज, तो rural segment is growing at a much faster pace than the urban. And why Sorry, it is growing? actually, Because of highest MSP, because of higher MSP and higher spending power of the farmers and good monsoon. ये हो गया ना, तुम्हें सब बता दिया ना, कंपनी भी बता दी, मैक्रो इकोनॉमी बता दिया. हाँ, ये एक्चुअली बताने के लिए सर, मतलब what the question was कि what does Tata consumer does? Okay, so मैंने उसके अंदर बताया कि ये चीजें करती है. So they didn't ask me further that कि okay, मतलब उनका क्वेश्चन ये था ज्योति मैम का कि वो करती क्या है. उनका मतलब था कि फार्मर से लेती है क्या, कि क्या करती है, ऐसे करके. सो इट वाज द कॉन्वर्जेशन वाज नॉट गोइंग टूवर्ड्स कि मतलब कि वो बता दूं मैं कि उसके अंदर कैसे है. मैंने खाली ये बताया कि इस सेगमेंट में ऑपरेट करती है, उसमें संपन्न है, ऐसा है ठीक वो है वो. फूड्स के अंदर, वैसा करके. तो वो एक्चुअली मुझे मैक्रो और या कुछ डेटा बोलने का ना वो चांस ही नहीं मिला, नहीं बिकॉज ठीक है, इंटरव्यू वो वाज. फाइन, वो फाइन, वो बाकी फाइन, मुझे वो फाइन. रीजन, बाकी रीजन सब पता था, पूछते भी तो कुछ मैं बता देता. नहीं वो फाइन. क्या करता है कंज्यूमर मेकिंग एफएमजी, ऐसा नहीं बोलना होता है. एफएमजी हर कंपनी इज इनटू मेकिंग बेवरेजेस एंड फूड प्रोडक्ट्स. अच्छा. एफएमसीजी क्या होता है? एफएमजी तो पूरा है. एफएमसीजी बहुत कुछ हो गया, टूथपेस्ट भी हो गया एफएमसीजी में. वो बना राइट राइट. टूथपेस्ट तो वो बाद में इसलिए मैंने उसको बरोबर बताया, मतलब बाद में कि इट इज इनटू इंडिया बेवरेजेस व्हिच हैज नरिश्को एंड ऑल, मतलब ऐसा करके प्रॉपर बोला, ऑल नहीं बोला. और फिर उसके बाद में क्या बोलते हैं, इंडिया फूड्स हैज संपन्न, सोलफुल, लाइक दिस. सो मैंने हाँ क्या एग्जांपल है, दिया वो इसमें. सीरियल्स है, वो सीरियल्स है, वो सब बताना. क्योंकि अगर मैं तुमको मेरे को पूछूं लगता है तुम क्या आंसर करते थोड़ा हो, एक्सटेंड करना चाहिए था. हाँ वो आंसर थोड़ा एक्सटेंड करना चाहिए था कि स्पेसिफिक ना हम्म, डेटा के साथ बताना कि इंडिया फूड से कितना आता बरोबर. है, जैसे कितना That आता was my mistake. That was my mistake. I told them data points like like normally what it is. I thought कि वो data points मैं जब उसको एकदम properly dissect करूंगा, then I'll tell them. But then I didn't got chance. So yeah, तो I वो should पहले have में ही वो told it. चांस, क्योंकि नेक्स्ट टाइम चांस नहीं आएगा ना तुमको वापस. Yes, yes, पहले ही perfect, बोलना perfect. होता है कि ऐसा ऐसा है, इतना हम्म, बड़ा. क्योंकि अगर मैं तुमको पूछूं हर्ष तुम क्या करते हो, सर मैं पढ़ाई करता हूँ, कैसा लगेगा? बरोबर, right. तो क्या पढ़ Yes, रहे yes. हो, तो वो होता है ना. हम्म. और वो वो क्या, स्टार्टिंग से ही एकदम डेटा पॉइंट्स बोल देने का. हाँ स्टार्टिंग से ही बोल देना कि सामने वो समझ है ना कि इसने पढ़ा है. वरना तुम बोला ना, हम्म. वरना स्टोरी ही लगेगा. तो तुम बोलोगे तो लगेगा हाँ, स्टोरी बता रहा है ये, कि सर ग्रो बरोबर, ग्रो होने वाला है. क्या ग्रो होने वाला है? क्या बरोबर. प्रूफ है ग्रो हो रहा है उसका? राइट राइट. मैंने ये बोला कि बस प्रीमियम सेगमेंट है इसमें, नरिश और कैपिटल फूड्स इन लोग ने लिया है, इतना रेवेन्यू कर रहे हैं, ये सब मतलब ऐसा बोला बस. लेकिन मुझे वो बोल देना चाहिए था कि ये पॉइंट कि इतने से ये ग्रो हो रहा है, इतने से हाँ ये ग्रो हो रहा है, थोड़ा एक्सटेंड करना चाहिए था आंसर को. क्योंकि यू विल नॉट गेट अनदर चांस, क्योंकि वो ही डेटा पॉइंट्स मतलब पे आई यू. थॉट, बट सर ये कंफ्यूजन ये हो जाता है ना, मतलब when we are saying it should be like, it should be concise also, and at the तो same time मतलब वो मेरे को मैंने ये नहीं कितने समझता कि how to have balance. मैंने कितने 1 मिनट के अंदर बोला ना, मैंने तुमको जो बोला व्हाई शुड हाँ, मतलब कंज्यूमर्स. बरोबर प्रॉपर बता दिया आपने. मेरा चार ही तो स्ट्रक्चर्ड नहीं पॉइंट है मतलब ऐसा. हाँ. चार ही तो पॉइंट्स बोला है, उसके ऊपर बताना नहीं है क्या करता है, कितना परसेंट है, दैट्स इट. टाटा ठीक है. कंज्यूमर इज इनटू बेवरेजेस, जो हम्म. बेवरेजेस एंड तुम्हारे टी कॉफी, बेवरेजेस में टी कॉफी, फूड्स में अंडरस्टैंड. सीरियल्स एंड रेडी टू हाँ. ड्रिंक्स. एंड वन इज वो इंटरनेशनल जाने दो, वन टी कॉफी, टी कॉफी. बाकी तो इंटरनेशनल और हाँ, नॉन ब्रांडेड है, वो तो ठीक है. बरोबर. मैं तो हाँ, मेन यही ना, बेवरेज और फूड ही बनाता ना. बेचते बरोबर. इंटरनेशनल, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. टाटा हम्म. कंज्यूमर ये करता है, उसमें क्या करता है, सर सारा फूड से इतना रेवेन्यू आता है, टाटा बेवरेजेस से इतना आता है, थोड़े बाद उसका इंटरनेशनल से आता है 20%. हाँ. इंटरनेशनल हो गया. कितना टाइम लगा मेरे को बताने के लिए? हाँ, ये सब बताया मैंने कि मतलब कि ये इनके सेगमेंट्स है सब प्रॉपर. बस वही है सेगमेंट कि वो जो कितना अपना परसेंट जो रेवेन्यू आता है? हाँ वो जो सेगमेंट में अपना क्या है, फूड्स में क्या है, बेवरेजेस में क्या है? बेवरेजेस में अल्कोहल भी बेवरेज ही हुआ. हाँ, वो बताया मैंने कि नरिश को आ रहा है ये सब सब. मतलब मेरे को थोड़ा नरिश वो इज अ एक्सप्लेन, ब्रांड. वो नरिश जब मैंने इज बताया ना. हाँ, उसके अंदर नरिश को ब्रांड के इसमें फिर वो मतलब कि टाटा ग्लूको डालते हैं, ये सब डालते हैं. लेकिन
मतलब मेरे को ये था कि जैसे मैं ये बता रहा था ना, उसी बात पे मैम ने बोला कि नहीं, मुझे जानना है कि उन लोग बेचते कैसे है सामान, ठीक है, मतलब क्या उसका वो कुछ फार्मर स्पेसिफिक से लेते क्वेश्चन हैं। होगा, दैट्स फाइन। तो ठीक है, उसने वो मेरे को स्पेसिफाई नहीं इसीलिए किया मैं ना, उसने स्पेसिफाई नहीं किया, तुम टाटा कंज्यूमर कहो तो यही करते हैं। तो कल ठीक उठ है, के ऐसे होगा अंडरस्टूड। ना, एक मारुति क्या करता है, ऑब्वियसली गाड़ी बेचता है ना, वे कैसे हाँ बनाता है, ठीक है, तो वो स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि कैसे बनाता है। हाँ, वही इसीलिए वो मेरे को लगा कि वो पूछेंगे मतलब आगे, बट देन क्वेश्चन वाज समथिंग एल्स आई वो थॉट। स्पेसिफिक था, दैट्स फाइन। हाँ ठीक है, चलेगा। आप मुझे मतलब जैसे ही आपको कुछ फीडबैक मिलता है ना, सो लेट मी नो, आई विल कॉल यू एंड देन आप बता दीजिएगा जो भी रहेगा। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर। मैं ये ऑटो के अभी नंबर स्टार्ट करता हूँ, अभी ये काम हो गया है तो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हर्ष, हाँ हाँ भाई, सॉरी वो कल अरे इट्स ओके, आई नो, आई नो, मैसेज। इट्स ओके। मैंने ना मैसेज किया है, तो एक बार ना मेरे नंबर पे एक मैसेज ड्रॉप कर देना, फिर हम डिस्कस करते हैं चीजें। मैसेज मेरे को किया है व्हाट्सएप पे। आपके नंबर पे नहीं, मैंने ग्रुप पे किया है, क्योंकि आपका नंबर पर्सनली नहीं था ना, आई हाँ डोंट मैं हैव। देता हूँ, ले लो ना, एक्चुअली मेरे को पता ही नहीं चलता ग्रुप पे कौन सा, तो इसमें किया है हाँ, मैं आपने। दे देता हूँ उसको, भाई शुभम। जो एक एक ही शुभम ग्रुप मैं तो सेंड है कर जो दूंगा, हमारा। शुभम मैं सेंड कर रहा तुमको उसका। हाँ, ओके सर, ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी, थैंक यू सर। काम